सो मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? चलो ठीक है। सो तो मैं जरा शेयर करूँ स्क्रीन को। तो ऑब्वियसली बिकॉज ये कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स का, बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स एंड रिपोर्ट राइटिंग है। ये कोर्स का जो नाम है ऑब्वियसली। तो हमें सबसे पहले जो डिस्कस करना है आज की क्लास के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ताकि जो है, जो शुरू के दो सिलेबस के कंटेंट्स हैं, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन है और ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन है, वो दोनों हमें जो है डिस्कस करना है। कोशिश करेंगे आज ही हम इसके बारे में डिस्कस करें। तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर ऑब्वियसली सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है कि व्हाट आर बिजनेस मैसेजेस एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम the communication which we do in our daily lives. So सबसे पहले तो देखते हैं कि as written over here, the business messages are different from college essays, term papers, and messages to friends. Conciseness and clarity count. तो एज यू नो कि ऑब्वियसली जो हम नॉर्मली जो फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, और ज़्यादा जो बिजनेस मैसेजेस होते हैं दे आर मोर फॉर्मल देन the communication which we do in our daily lives. In order to have good business communication, it should be purposeful, persuasive, economical, and audience oriented. Purposeful का मतलब जाहिर सी बात है, obviously if you do not know the purpose of communication, you won't be able to communicate appropriately with the audience. And you should always know the purpose of communication if you are the participant in the communication process. Secondly, persuasive here means it should be well considered when you are communicating to the audience. It should be persuasive and it should be convincing, right? And it should be considered important. So that is what it means of persuasive. Economical in the sense that it should not waste time of the audience or your time. It should save your time as well as the audience time as well. Audience oriented, obviously communication के लिए जो दूसरी चीज important होती है apart from the purpose is it should be audience oriented, which means it is done for the audience. We should know who our audience are, and we should have knowledge about the audience, what are their needs and what are the requirements of the audience, whatever they desire. We need to focus our communication on the audience. Things to know, obviously मैंने आपसे पहले कहा था कि जो है purpose is the most important thing as far as communication is concerned. So there can be many purposes of communication. You can just name any number of purposes. For example, you can communicate to inform, to share information, to remind people about something, to persuade, to convince, to write, to speak, to listen. There can be numerous number of purposes for communication. But some of the major purposes in the context of organizational communication can be considered as acquiring information, sharing of information, and building relationships. These are the three most important purposes of communication if we are talking about communication in business, or you can say as far as the organization is concerned, the most important purposes can be these three: acquiring information, sharing information, and building relationships or goodwill. Acquiring information means obviously to learn about something. Here it can mean to share, to inform people about something, right? Sharing of information is disseminating information, spreading information, and building relationships, which is one of the most important purpose of communication. Our relationships should be maintained. That is, we have to consider goodwill as an important asset for as far as the communication is concerned. So goodwill is some we can say it's sort of an intangible asset, which cannot be seen, by the way, but people
through their reactions, through their communication, establish goodwill and build good relationships. So these are the three most important purposes of communication. Apart from purpose, the other things to know can be the channel of communication, and you can understand that there can be various written channels as well as spoken or oral channels of communication. As you can see, some of the examples are given over here. Again, these all examples can be considered as part of the channels which are used in organizations or which are used for communication in business. Now, what we need to do is, and when we are considering the channel, apart from the purpose, we need to consider these some of the you can say questions whenever we decide which channel is the appropriate one, whether we should use an oral communication channel or a written communication channel. So these are some of the questions over here which can be regarded as important questions when considering the channel of communication. The other most important factor which has to be considered whenever we are स्क्रीन शेयर मैंने रिज्यूम अच्छा शेयर कर देता हूँ कैन यू अब शेयर हो रही है स्क्रीन सर ब्लैक ही आ रही है स्टॉप करके दोबारा शेयरिंग कर ले अच्छा मैं फिर से करता हूँ रिज्यूम शेयरिंग का मैं बटन दबा रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा चलो मैं देखता हूँ फिर से जिससे स्टॉप कर रहा हूँ फिर आप दोबारा कर लीजिए अब फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन ठीक है अब हुआ अब आ रही है स्क्रीन जी बिल्कुल सर आ रही है बिल्कुल आ रही है अच्छा मैं ऑब्वियसली पहले जो डिस्कस कर रहा था तो मैं बेसिक्स को डिस्कस कर रहा था कि ऑब्वियसली why it is important to actually consider some of the factors for business communication. जिसमें purpose is one of the most important factor, and obviously the second most important factor is the audience, which we should know about. Audience को आप जो है categorize कर सकते हैं primary audience के अंदर और secondary audience के अंदर. प्राइमरी ऑडियंस वो होते हैं ऑब्वियसली जो कि इनिशियल ऑडियंस होते हैं जो कि बेसिक ऑडियंस होते हैं आप कह लीजिए द ऑडियंस व्हिच विल रिसीव योर मैसेज द फर्स्ट हैंड तो उसके अंदर एनी रीडर और लिसनर कैन बी द ऑडियंस ऑडियंस कैन बी वन पर्सन और ऑडियंस कैन बी मेनी पीपल एट अ टाइम सो we have to consider who our audience are, what are our professional and personal relationships with them, and what kind of communication we are doing with them, and what type of response we will receive from the audience. तो primary audience वो है जो कि main audience होती है या initial audience होती है, लेकिन उसके अलावा जो है secondary audience भी हो सकती है आपकी communication की sometimes. For example, अगर classroom की बात करें तो classroom के अंदर if the teacher is teaching some students about something, so students who are in the classroom, they are the primary audience, but the students who are not part of the class but they are part of the for example institution, and for example if the teacher is considering that these secondary audiences who are not part of the class, they may ask the primary audience about what has happened in the class, so those can be considered as secondary audience. So we have to also consider who else might see or hear the message and how they are different from the primary audience. So primary audience or secondary audience, ये भी बहुत important चीज होती है obviously when we are talking about communication and especially business communication. तो एक तो चीज हो गई, एक फैक्टर जो कि है वो है आपका पर्पस और दूसरा जो है ऑडियंस. इसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या चीज होती है ऑब्वियसली समथिंग व्हिच थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, व्हिच कैन सेंड इंफॉर्मेशन. तो वो वेरियस चैनल्स हो सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन चैनल्स हो सकते हैं, और जो है स्पोकन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन चैनल्स भी हो सकते हैं. और रिटन कम्युनिकेशन चैनल्स में जैसा लेटर्स हैं, ईमेल्स हैं, या ऑब्वियसली आपके जो है मेमोज हैं या रिपोर्ट्स हैं,
As far as the oral communication channels are concerned, उसके अंदर जो है मीटिंग्स हो सकती हैं, प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, राइट, टेलीफोन कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, तो ये आपके जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, एज फार एज बिजनेस कम्युनिकेशन इज कंसर्न, पहले तो हमें समझने की जरूरत है व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज वी आर यूजिंग टू कम्युनिकेट इन बिजनेस। ऑब्वियसली हम कोई वो लैंग्वेज वैरायटी की बात नहीं कर रहे कि ऑब्वियसली इंग्लिश यूज करना है या उर्दू यूज करना है या कोई और लैंग्वेज, अरबिक या जर्मन लैंग्वेज यूज करना है। वट एवर लैंग्वेज यू आर यूजिंग, देयर आर सर्टेन एसेंशियल क्वालिटीज विच नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस। मिसाल के तौर पे अगर हम ये नेक्स्ट वाली स्लाइड को देखें तो यहाँ पे आप अगर मिडिल वाला कॉलम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि कन्वर्सेशनल टोन, यानी ऑब्वियसली बिजनेस लैंग्वेज इज नॉट अनप्रोफेशनल लैंग्वेज, or you can say it is more conversational. Acha, in some of the cases people consider that business language which is used for communication in business is formal. Obviously it's formal in the sense of official, but it's not too formal. if we say ना कि बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर फॉर्मल हम कहेंगे सब उसको कहेंगे सब फॉर्मल ही है, तो इसका मतलब ये है कि इतना कि उसकी फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। तो जैसे मिसाल तो फिर लैंग्वेज ऑफ लॉ होती है या कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है या लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो लैंग्वेज होती है वो इट्स टू फॉर्मल, बट बिजनेस लैंग्वेज इज नॉट as formal as you can see in the legal documents or other places. It's more conversational, it's more friendly, you can say, but it cannot be unprofessional language or informal language, so it's somewhere in the middle. तो अगर आप जो है नेक्स्ट स्लाइड पे देखें तो मिसाल के तौर पे कन्वर्सेशनल जो लैंग्वेज है जो कि मिडिल कॉलम में है यहाँ पे दी हुई, वो मिसाल के तौर पर दिया हुआ है यहाँ पे करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए, कन्वर्सेशनल टोन है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, familiar words. So see, these are some of the essential qualities we need to find out as far as the language of business is concerned. So obviously in a formal language, हम कहते तो हैं business language is formal language because it follows lot of formalities, but not too formal as we can find out in the legal documents or in the language of the law. तो इसको बस थोड़ा सा just differentiate करने के लिए I am just showing you some of the slides over here. फिर जो नेक्स्ट चीज हमें अभी हम लैंग्वेज के बारे में और भी बात करेंगे आगे जाके कुछ स्लाइड्स के अंदर, बिकॉज हमें ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है एंड वी हैव टू कंसिडर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल, व्हिच आर आल्सो वन part of the basics of communication. So we cannot deny the fact that we cannot just leave or language if we are talking about communication. Whenever we talk about communication in business, we have to also consider what type of language we have to use for communication. If you don't know what kind of language we are using, we won't be able to effectively communicate in business. तो ये हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन दूसरी और चीजें हैं जो हमें देखने की जरूरत है कि why communication skills are important and why business communication has become so important nowadays. तो उसमें आप देख सकते हैं there are some of the things which are written over here in modern time in today's world. Communication skills, or you can say knowing about communication in business is essential for many things. For example, job placements, job performance, career advancement, or success in the new world of work. So there can be many factors why communication skills are considered important. And obviously अगर if जो है किसी को सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. And obviously we will move on to the next slide. Strong communication skills are necessary for hiring. Top skill set sought by employers, critical for promotion. Top skill set sought by employers means that obviously nowadays in today's world, one of the most important skills which are obviously considered by the employers would be the communication skills, especially how you communicate in business. So this is the top skill. Apart from other skills, for example, what kind of potential you possess, or what kind of qualifications or attitude you have, or what kind of aptitude or motivation you possess. Apart from these skills, you should also be able to convey to the employers or interviewers, for example, that you possess good communication skills. And because it's necessary for hiring, for critical for promotion, essential for effective job performance, more important now as a result of technology, learned through instruction and practice. But the last point, learned through instruction and practice, means that this skill is not
you can say is inbuilt, or we have ये हम पैदाइशी कोई हम सीख के नहीं आते communication skills को. Through our experiences, through our knowledge, we improve our communication skills, right? And instruction का मतलब ये होता है जैसे मिसाल तौर पे क्लासरूम के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, the business communication teacher is teaching you about communications. That is what it means as far as the instruction is concerned. Formal instructions जिसको हम कहते हैं. Practice, obviously, it has to be improved through individual efforts. So if you want to improve your communication skills, you need to practice about it from various other places by talking to people, or obviously doing the learning about the kind of communication, effective communication through various ways. So it can be learned through instruction and practice. And the rest of the points you can understand, I think so. So we will move on. Obviously, because this is a refresher course, so I'm just moving on quickly because we have to cover a lot of topics in the 6 classes which we are given for this week. So in 6 classes we have to cover many topics. So today's communication, you can say, lecture is based on basics, so I'm just moving on quickly. All right. So in today's information age, you need to expect to work with words, figures, and data. Obviously, you know about it, and because if you are you can say part of a modern society, you know how it is important to work with words and figures and data. Why these are some of the elements which are key for success in business, and just a success as a knowledgeable person in the society as well. So if you have the data, a lot of data with you, if you can work, it's easy for you to work with figures and words, you are obviously considered more important in the society. Obviously, you are also expected to think critically. This point means कि critical का मतलब कोई dangerous नहीं होता या कोई खतरनाक करके ऐसा नहीं होता. Critical का मतलब ये होता है you should be able to make opinions about things which are presented to you. For example, if you are reading something, so एक तो होता है simple reading जिसके अंदर you are just seeking information, right? You are just an information seeker. But obviously, if you want to critically read, so there you need to also not just seek information, but you can form opinions about the text which you are reading. Similarly, you have to think critically as well. Whatever is happening around you in today's world, whatever is you are observing around yourself, obviously you are just not just getting information or seeking information or taking information. You need to also be able to form opinions about it, how good it is, how effective it is, right? Is it the right kind of communication or not? So it means that you have to think and obviously communicate critically. Today's world, you have to make decisions, you have to take charge of your career, and obviously you learn about things throughout your life. जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, तो आप देखें कि डॉक्टर्स जब MBBS कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जो है लर्निंग खत्म हो जाती है. With the passage of time, they have to upgrade their knowledge, they have to update their knowledge. Similarly, as a communicator, as a knowledgeable person in this world, you need to continue learning all your life. Whatever field you belong to, it doesn't matter. So ये सब चीजें important है आजकल की information age के अंदर, क्योंकि you will find information with you everywhere because of the advent of internet or to see sources हैं जहाँ से आप you have the right to get information of any kind. You have access to the information everywhere. So if you have the access to information, but you should also know what type of information is important for you, and you should, as I said, you have to critically understand it and also think about it and also communicate and form opinions about it. So not just as a information seeker, but as an opinion leader. So you have to become opinion leaders, and obviously for that you need communication skills, right? And especially if you are part of any organization or business, so you need to be able to communicate effectively in that particular aspect.
All right. There are other things we need to consider as far as the changing trends in the workplace, which highlights the role of communication more, or you can say the importance of communication more. There are certain factors that affect you in the new workplace, new work environment. You know that because of the changes in the you can say in the world, which is happening all the time. So there are certain trends, or you can say new elements which are coming up, and people are getting ready for it. So some of those factors can be seen in the next slide, as it's written over here that obviously in today's world, in business environment or in an organization, you will find that information is considered as a corporate asset. Flattened information as a corporate asset means that you have the information, you have the knowledge about something, and the overall, you can say the company considers all the employees and their knowledge and experiences as the asset for the company. So if the employees, if the people who are working in an organization are more knowledgeable, more qualified, and know how to communicate skillfully, so for the organization, you can become an asset for them. There are other things. For example, nowadays you will find more participatory management. Obviously, we are discussing these the trends in the new workplace because we want to highlight the importance of communication, or you can say the role of communication, which we have to obviously consider when we should be able to know about it, so that our communication skills can be improved as well. So, for example, there is one more thing which is written: more participatory management means in today's working environment, there is more open climate. Gone are the days when people used to have closed communication climate. In open communication climate, everyone has the opportunity to contribute to the decision making of the company, or you can say he or she can be a participant in major decision and problem solving. And for that, you need to be able to get access to communication, to communicating channels, right? And you should be able to get access to, for example, communicating with any member of the organization if you can. Or you can say more participatory management means that we do not work in isolation nowadays. We work in teams. We work, for example, in groups, and obviously, when you're working in a group or in a or you can say as a team, so you have to communicate with the people who are part of your team. So in one way, you can say increased emphasis on teams are given, right? More participatory management has to do with, as I said, as far as the company is taking important decisions, organizations are taking important decisions or solving important problems, they obviously sometimes ask the employees what kind of things needs to be done. And that can be done through surveys or through polls and so on. Innovative communication technology, we are living in a world where you can say there are a lot of innovative communication technologies. For example, all of us have got smartphones in our homes, right? We are using it all the time, and this is what innovation in communication technology is. Excuse me. Right. So I was saying that innovative communication technology, जो स्मार्टफोन्स हम लोग यूज करते हैं, ये एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से it has become so easy for us to communicate with the people all the time. Heightened global competition का मतलब ये है, this is the world of globalization. और आजकल के ज़माने में obviously gone are the days when people used to, for example, invest in a particular local market, or you can say local, you can say in their country, or obviously now they can invest in any country around the world, obviously. So the competition has increased globally. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें नेस्ले कंपनी की, तो नेस्ले की जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में आजकल अवेलेबल है. उसकी वजह यही है कि उनके पास, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर. एक ज़माना था कि जो है जिस कंट्री में कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो सिर्फ उसी मुल्क के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकती थी. अब जो है पीपल कैन इन्वेस्ट एनीवेयर दे वांट. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके रोल ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए आप, या इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हाईलाइट होगी.
राइट तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिक चीजें डिस्कस किया है, मिसाल के तौर पर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि obviously important होते हैं for any type of communication, whether we are speaking to people or writing about something, जिसके अंदर पर्पस हो गया, ऑडियंस के बारे में हमें पता होना चाहिए, और चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हमें पता होना चाहिए, सिचुएशन, इन शॉर्ट हमें सिचुएशन पूरी पता होनी चाहिए whenever we are communicating फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और दूसरी चीज हमने जो डिस्कस किया, हमने ये भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि जो बिजनेस लैंग्वेज जो होती है जो कि यूज की जाती है फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, वो फॉर्मल तो होती है लेकिन नॉट एज फॉर्मल एज द लैंग्वेज ऑफ लॉ और अदर थिंग्स। इट इज मोर कन्वर्सेशनल, द टोन ऑफ द लैंग्वेज इज वेरी कन्वर्सेशनल। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को हाईलाइट किया, रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन टुडेज वर्ल्ड, इस प्रेजेंट टाइम के अंदर, मॉडर्न एरा के अंदर क्या कम्युनिकेशन का रोल है और क्यों ज्यादा हमें जरूरत पड़ गई है कम्युनिकेशन स्किल्स को अपनी इम्प्रूव करने के लिए, ताकि जो है बिकॉज इतना ज्यादा डेटा और हमारे पास अवेलेबल है इस वक्त इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी नीड टू handle that data, and for that we need to be aware of how to effectively communicate in business. तो ये कुछ चीजें हमने अभी तक डिस्कस की। अब हम थोड़ी सी और बेसिक चीजों के पास आते हैं। मिसाल तौर पे द नेक्स्ट स्लाइड हैज टू डू विद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जाहिर बात है हमने कम्युनिकेशन की जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो तो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट इट, लेकिन अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर देते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन की कहीं पे भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, चाहे आप अपनी ICMA की स्टडी टेक्स्ट के अंदर पढ़ें या कोई CA की स्टडी टेक्स्ट है, या इवन जो आपके रिकमेंडेड रीडिंग बुक्स हैं, एक्सीलेंस इन कम्युनिकेशन एक बुक है जो कि सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो यू विल फाइंड कम्युनिकेशन डेफिनेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स। लेकिन वट एवर द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन यू आर रीडिंग और यू नो द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज मोर लेस सिमिलर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वर्ड्स थोड़े से तब्दील हो सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट इज सेम। मिसाल तौर पर अगर आप कहें कि कम्युनिकेशन की जब भी हम बात करेंगे, वी नो दैट इट इज ऑलवेज डन इन अ प्रोसेस। सो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें होती हैं अवेलेबल जो वी नीड टू कम्युनिकेट। तो यानी प्रोसेस को फॉलो करना, सीक्वेंस को फॉलो करना, एंड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली यू नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस। तो नॉर्मली जो डेफिनेशंस बुक्स में अवेलेबल होती हैं वो ये होती हैं कि मिसाल तौर पे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और यू कैन से imparting of information or exchanging information, yes, through speaking, through writing, or through, for example, non-verbal communication, जिसके अंदर obviously through your body movements or your facial expressions or gestures you can communicate as well, not just always speaking or writing. Even if you are silent and you are using your gestures or body movements, you can communicate with the other person. The other person can also understand. The other thing which is also important for communication is it's not about just sending information. The sender's role as a communicator should be to also make the receiver understand what kind of communication is, obviously what kind of message the sender has sent. So communication will only be, the process of communication will only be complete when the receiver understands the message, and also gives a feedback of some sort. So if the receiver is able to give a feedback, then you can say the process of communication is complete. तो कहीं से भी आप पढ़े प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, आपको यही पता चलेगा ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज और डेटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम कह रहे हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन through sending or receiving various messages. Information जो वर्ड है ना, ये एक we can say broad मीनिंग का वर्ड है। इंफॉर्मेशन के अंदर तमाम किस्म की नॉलेज आ जाती है, डेटा आ जाता है। तो हम नॉर्मली हम कहते हैं कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है कम्युनिकेशन। खैर, हमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जो है कई सारे सवाल आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो नॉर्मली हम जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में डिस्कस करते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करने की जरूरत होती है। तो वैसे तो आप obviously you can read about the process of communication and what is communication is through your recommended reading books.
like for example ICMA's study text or excellence in business communication, ये एक सामने एक फिगर आपको नजर आ रहा होगा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये भी फिगर कोई ऐसा नहीं है कि एक हर बुक में अलग अंदाज से कोई भी फिगर या मॉडल दिया हुआ होता है, लेकिन मोर लेस सब फिगर्स या सब मॉडल्स जो हैं या कोई भी जो है ये डायग्राम जो होता है ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को जो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो आप कोई भी डायग्राम को देख लें, आपको कॉन्सेप्ट बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का समझ में आना चाहिए। तो उसमें वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली द पर्पस ऑफ द डायग्राम इज टू ऑब्वियसली टॉक अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें जो कंपोनेंट्स नॉर्मली आपको मिलेंगे प्रोसेस कम्युनिकेशन, सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट है वो है सेंडर। अच्छा, सेंडर को आप चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस फिगर के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंडर हैज एन आइडिया। The first thing which is important for communication is the idea formation. So who will form the idea? Obviously the person who will be deciding to send the message. तो idea formation होता है and then the sender sends or encodes the message. तो encoding एक process है। कई books में आपको नजर आएगा कि पहला step है encoding या senders encodes। तो whatever the case is, obviously आप उसको समझने के लिए यही कर सकते हैं। The sender first of all forms an idea and thinks about how to form or create a message. Should it be a written message or a spoken message or whatever the case is? The message is formed and the sender then sends the message or encodes the message. So this is the first component of communication, you can say, or you can say the element of communication. अच्छा, सेंडर सिर्फ सेंडर का एज अ पर्सन नहीं होता। सेंडर ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट एनी पर्सन, the person can possess a lot of emotions, different feelings, ideologies, knowledge, experiences, and other things. So whenever the person is sending a message, not only he's sending that particular message, but also with it, he may be sending the emotions or feelings which he or she possesses, right? The knowledge or experiences or the ideology or beliefs or values or attitudes, whatever the case is, obviously through in a message, all these things can be part of the message sometimes. So the first component of communication, you can say, is the sender, or you can say encoding. Now, then the second component of communication or element of communication has to do with the message itself. So what is a message? A message can be, you can say, written, or it can be spoken. It can be lengths can vary. It can be a short message or a long message. It can be just one word message, or it can be the whole report as a message. So there can be variety of messages. So whatever message the sender is trying to form, whether it's written or oral, obviously the message is the second component itself. Now, how the message is sent? Message is sent through various communication mediums or channels of communication. In some of the books, you will find that the difference between what a medium or channel of communication is. It's different, by the way. Medium, you can say, is just a singular form of medium. Achha, there can be various written communication mediums. There can be various oral communication mediums, right? And within the mediums, you can find out that there are various channels of communication. मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें एक लेटर की, लेटर एक जो है, इसको आप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इसको चैनल भी कह सकते हैं। चैनल actually transmits the message. It acts as a bridge through which the message travels from the sender to the receiver. तो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज होती है चैनल के थ्रू, लेकिन चैनल जब डिसाइड करेंगे जब हमें मीडियम पता होगा। तो अगर मिसाल के तौर पे मैसेज इटसेल्फ कैन बी अ मीडियम। फॉर एग्जांपल, आपने एक लेटर लिखा तो वो एक मीडियम बन गया, लेकिन जैसे आप उस लेटर को भेजोगे, मिसाल के तौर पे आप उस लेटर को ईमेल के थ्रू एज एन अटैचमेंट भेज सकते हो, तो वो ईमेल बन जाएगा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। उसी तरीके से आप नोटिस बोर्ड पे अगर लेटर को पेस्ट कर दोगे तो नोटिस बोर्ड चैनल बन जाएगा मीडियम लेटर, जो कि रिटन कम्युनिकेशन मीडियम। उसी तरीके से अगर if you are obviously sending it by post, तो by mail या by post, तो जो post है या mail है वो चैनल बन जाएगा, और जो लेटर है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और डिफरेंशिएशन होती है। कुछ लोगों के नजदीक मीडियम और चैनल सेम चीज होती है, लेकिन मीडियम और चैनल के अंदर डिफरेंस ये है, राइट? Then obviously the channel travels from the sender, the message travels from the sender to the
through the channel to the receiver, and the receiver's job is to decode the message or to receive the message. Not only just receiving the message, but also the receiver should be able to understand the message. तो वो रिसीवर को भी चाहे तो आप 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले वो रिसीव करेगा फिर उसको अंडरस्टैंड करेगा. तो रिसीवर कैन बी कंसिडर्ड द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है. उसके बाद जो है अभी भी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक रिसीवर कोई ना कोई फीडबैक ना सेंडर को भेजे. और वो जैसे मैसेज भेजा जाता है सेंडर की तरफ से, ओरल और रिटन, शॉर्ट और लॉन्ग, वर्बल और नॉन वर्बल, तो उसी तरीके से फीडबैक भी जो है इसी अंदाज से भेजा जा सकता है. वर्बल और नॉन वर्बल फीडबैक भी हो सकता है, शॉर्ट और लॉन्ग भी हो सकता है, एक वर्ड का फीडबैक भी हो सकता है, एक पूरा लेटर या ईमेल भी एक फीडबैक हो सकता है. सो इन सम वे और द अदर द रिसीवर हैज टू गिव सेंड द फीडबैक टू द सेंडर. ठीक है. तो यहाँ पे फीडबैक पे आके हमारे पास जो है एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स जो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होते हैं. उससे पहले अगर कहीं बीच में अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में रिसीवर को सेंड मैसेज मिल भी जाए और फीडबैक अगर रिसीवर ने ना दिया तो उसको हम मिस कम्युनिकेशन कहेंगे. तो मिस कम्युनिकेशन क्या होती है? वो होती है जिसके अंदर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो ना किया जाए. अच्छा. और एक और चीज जो हमें इंपॉर्टेंट समझने की होती है इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, वो होती है नॉइज या बैरियर्स टू कम्युनिकेशन. ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है डिटेल के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं. अच्छा. अब वो जो नॉइज है या बैरियर है, ऑब्वियसली कई जगहों पे वैसे तो बैरियर इज अ यू कैन से अ स्टैंडर्ड टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर एनीथिंग व्हिच इज hindering the communication process, or you can say or creating a obstacle for the communication process, or you can say anything which is blocking the process of communication at some place, right? तो उसको हम कहते हैं बैरियर. कई बुक्स में उसको नॉइज कहा जाता है, लेकिन वट एवर यू आर यूजिंग नॉइज या बैरियर, इट डजंट मैटर. कुछ लोग उसको जो है ऑब्स्टिकल्स भी कहते हैं, कुछ लोग उसको डिस्ट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, कुछ लोग उसको डिस्टॉर्शन भी कह सकते हैं. अच्छा. अगर आप देखें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सेंडर से लेके रिसीवर तक जितने भी एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं या कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, तो जो बैरियर होता है ना वो किसी भी लेवल पे किसी भी एलिमेंट या कंपोनेंट के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकता है. सही है. तो ऐसा नहीं है कि कोई बैरियर कोई खास जगह पे आके कम्युनिकेशन प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेगा ऑब्वियसली, या इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा. इट कैन क्रिएट इंटरफेरेंस और ब्रेक डाउन और ऑब्स्टिकल और क्रिएट अ प्रॉब्लम एनी पार्ट ऑफ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जब भी ऐसा होगा उसको हम कहेंगे मिस कम्युनिकेशन हो गई, या हम कहेंगे कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो गई. तो बैरियर्स बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं. हमें कुछ देखना है बैरियर्स, ट्रेडिशनल बैरियर्स को कुछ हम जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. वैसे तो देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ बैरियर्स जो विच कैन अकर व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल. लेकिन ऑब्वियसली लेकिन एज ऑथर्स ऑफ कम्युनिकेशन दे व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ऑलमोस्ट considered all the barriers. They have categorized the barriers into 5 different categories. ये traditional barriers हम कहते हैं. Within these traditional barriers आपको हर दूसरे किस्म का barrier more or less मिल जाए. तो जो ट्रेडिशनल वे है वैसे तो आप चाहें तो बैरियर का कोई भी नाम रख सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ communication. It also depends on to whom you are communicating, but barriers can be named into these 5 categories. The first one is known as physical barrier, technical barriers, psychological barriers, physiological barriers, semantic और language barriers. ये जो है इसको कई जगहों पे नॉइज के नाम से भी कहा गया है, फिजिकल नॉइज और टेक्निकल नॉइज. तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप देखें आईसीएमए के स्टडी टेक्स्ट में हो सकता है बैरियर का वर्ड यूज हो रहा होगा, कई जगहों पे नॉइज का वर्ड यूज हो रहा होगा, एक और जगह पे डिस्टॉर्शन का वर्ड यूज होता है. वैसे नॉइज और डिस्टॉर्शन में एक डिफरेंस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, बल्कि आप अभी सुन लीजिए. नॉइज वो चीज होती है जो कि आपके मैसेज को रिसीवर तक पहुंचने ना दे, यानी डैमेज कर दे मैसेज को. अगर मैसेज रिसीव भी हो तब भी वो डैमेज्ड मैसेज मिले तो उसको हम कहते हैं नॉइस.
और डिस्टॉर्शन वो चीज होती है जिसके अंदर मैसेज तो मिल जाता है रिसीवर को, लेकिन वो सही तरीके से नहीं पहुंचता। जैसे मिसाल तौर पर अगर आप किसी के साथ टेलीफोन पर बात कर रहे हो, तो कभी कभी जो है डिस्टॉर्शन होती है लाइन के अंदर, तो आप हो सकता है जो रिसीवर है दूसरे एंड पे उसको आपकी पूरी बात समझ में ना आ रही हो, या तो रिसीवर आपके मैसेज को अंडरस्टैंड ना कर पाए, या ऑब्वियसली वो मैसेज के अंदर कंप्लीट मैसेज ना मिले, तो उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। नॉइज वो चीज होती है जो कि पूरा मैसेज को डैमेज ही करता है। तो खैर ये वैसे उसका यू कैन से एक डिफरेंशिएशन है, लेकिन हम दोनों चीजों को बैरियर्स के नाम से कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज टर्म जो है ना बैरियर्स है। अच्छा, पहले तो फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर क्या होता है वो आपको स्लाइड्स को भी मैं दिखा देता हूँ साथ साथ, फिर जो है अच्छा कुछ और अदर बैरियर्स भी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो फिजिकल नॉइज कह लीजिए, फिजिकल बैरियर कह लीजिए। फिजिकल नॉइज वो होती है जो कि एक्सटर्नल टू योर माइंड और बॉडी होती है। मिसाल के तौर पर आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आपका फिजिकल सेटिंग कैसी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग a class in the classroom and the teacher is teaching you about something, और आप देखेंगे मुस्तकिल कोई एयर कंडीशन की आवाज आ रही हो या फैन की आवाज आ रही हो, तो वो हो सकता है कोई ना कोई बैरियर क्रिएट करे during the communication, when the teacher is speaking and you may not be able to hear him because of the noise of the air condition or noise of the fan. वैसे तो हम इतने ज्यादा स्किलफुल कम्युनिकेटर्स ऑलरेडी हैं एज ह्यूमन बींग्स कि वी ओवरकम दीज बैरियर्स ऑल द टाइम। हम नोटिस नहीं करते, लेकिन अगर हमने फॉर इंस्टेंस अगर नोटिस करना शुरू कर दिया कि एयर कंडीशन की आवाज आ रही है या ट्रैफिक की नॉइज आ रही है, तो उससे क्या होगा, हमारी कम्युनिकेशन जो है ऑब्वियसली विल बी यू कैन से ब्रोकन, और यू कैन से बैरियर अराइज होगा। तो फिजिकल नॉइज वो होती है जो कि एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल टू योर सेल्फ होती है। वो कुर्सियों की आवाजें या ट्रैफिक की आवाज आना, तो ये इस टाइप की जो बैरियर्स होते हैं वो फिजिकल नॉइज कहते हैं या फिजिकल बैरियर्स कह लीजिए। टेक्निकल, एज यू कैन सी यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। टेक्निकल तो जैसा अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था एक टेलीफोन लाइन का, कि उसमें कोई टेक्निकल इश्यूज आ जाएं, या आप मिसाल के तौर पे आप ईमेल भेजना चाह रहे हैं किसी को या व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाह रहे हैं, बट यू डू नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन या इंटरनेट नेटवर्क इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल बैरियर और समथिंग। ठीक है, तो ये एक है बैरियर। उसके अलावा है आपके साइकोलॉजिकल बैरियर, नेक्स्ट वन। अच्छा, ये हम तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन एज फार एज कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस करने वाली बात है, वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल, और बैरियर्स मैंने जैसे आपको कहा, बैरियर्स विल ऑलवेज बी देयर, लेकिन एज गुड कम्युनिकेटर्स ना हमें कोशिश करनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि हम स्किलफुल हो, और वी शुड बी एबल टू ओवरकम ऑल दीज बैरियर्स ऑल द टाइम। बैरियर्स हमेशा होते हैं हर जगह। अब साइकोलॉजिकल बैरियर्स वो होते हैं जो ऑब्वियसली इट हैज टू डू विद योर माइंड, माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। मिसाल के तौर पे कुछ इमोशंस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ फीलिंग्स का मसला भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप गुस्से में हैं, या आप जो है सैड हैं, या ऑब्वियसली अगर आप जो है कंफ्यूज्ड हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स कह सकते हैं। या यू आर अनेबल टू कंसंट्रेट ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू, या ऑब्वियसली जो है आपको कोई और मसला साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें जो है साइकोलॉजिकल नॉइज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसको साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इसके अलावा भी और भी हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। एक जैसे सेलेक्टिव परसेप्शन एक बैरियर है। ये दो तीन इसलिए मैंने थोड़े से हाईलाइट करने हैं आपको, क्योंकि ये एमसीक्यूज के अंदर भी आते हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी आते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। तो anything which has to do with your emotions or your feelings can be considered as the barrier to psychological barriers. फिजियोलॉजिकल नॉइज कह लीजिए नेक्स्ट वन, और फिजियोलॉजिकल बैरियर कह लीजिए, वो बैरियर जो कि आपके बॉडी से रिलेटेड हो। ठीक है, एक तो वो होता है कि जो कि माइंड से रिलेटेड है, जो कि वो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी रिलेटेड बैरियर्स। मिसाल तौर पे जैसा अपीयरेंस, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अपीयरेंस का मतलब शक्ल सूरत की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अपीयरेंस का ताल्लुक है कि अप्रोप्रिएटली मिसाल के तौर पे आपकी अपीयरेंस ना हो। मिसाल के तौर पे you went to some occasion or party and you are not dressed according to the equation, so that can act as a barrier, physiological barrier for other people. या आपके मिसाल के तौर पे टीचर जो है पढ़ा रहे हैं आपको क्लासरूम में, और वो
मिसाल के तौर पे अप्रोप्रिएट फॉर्मल ड्रेस कोड के अंदर नहीं है, कोई कैजुअल कपड़े पहन के आ गए आपके टीचर, तो हो सकता है जो है एज ए स्टूडेंट आप उनको शायद सीरियसली ना लें। तो अपीयरेंस का ताल्लुक शक्ल से नहीं होता, आपकी जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है, आपकी क्लोथ्स हैं, आपका ड्रेस कोड है, वो सब चीज़ें इट दे कैन एक्ट एज अ बैरियर। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि अगर आप थके हुए हैं, फटीग्ड हैं, या आप भूख भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, या थर्स्टी हैं आप, तो आपके चेहरे पे वो चीज़ें जो है नमूदार हो सकती हैं। या आप स्लीप स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है आपने। वैसे स्ट्रेस जो है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस जो है साइकोलॉजिकल बैरियर भी कह सकते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि उसका वो नज़र आता है लोगों को कि आप जो है बहुत थके हुए हैं, या बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, शायद परेशान, तो वो आपके बॉडी के अपीयरेंस से भी कभी कभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यू आर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर इशू, यू आर फेसिंग अ पर्टिकुलर इशू। तो उसके अलावा आपकी द वे यू मूव अराउंड इन फ्रंट ऑफ पीपल, द वे फॉर एग्जांपल योर बॉडी मूवमेंट्स आर, or your facial expressions are can, which are obviously non-verbal communication, part of non-verbal communication skills, तो वो it can also be a physiological barrier। तो ये तो 4 बैरियर्स अभी तक हो गए हैं। 5वां आपका है सिमेटिक बैरियर। सिमेटिक बैरियर का ताल्लुक है लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के साथ। जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कभी या तो कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम में कभी कभी ऐसा होता है, टीचर्स समटाइम्स फेस इट कि द टीचर इज यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज बट द स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द English language, right? So they would prefer Urdu sometimes. So they are unable to understand the words, for example. तो वो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, या सिमेटिक बैरियर आएगा। सिमेटिक का मतलब होता है ऑब्वियसली मीनिंग्स, द वर्ड्स की मीनिंग की से ताल्लुक होता है इसका, कि आपको मीनिंग्स समझने में मुश्किल हो। अब वो चाहे कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैंग्वेज आपको आती है, लेकिन आपको ऐसे वर्ड्स जो यूज किए जा रहे हैं आपके सामने, हो सकता है उसकी मीनिंग्स आपको ना आ रही हो, तो वो तब भी जो है सिमेटिक बैरियर अराइज हो सकता है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे जार्गन एक है चीज जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए व्हेनेवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल। जार्गन क्या चीज होती है? यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स होती है। हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली हु इज आवर ऑडियंस। इफ द ऑडियंस नो अबाउट द वर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर यूजिंग, then it is allowed that you should be able to use those words and concepts. Otherwise, we should avoid using these technical terms with all the type of audiences. जैसे मिसाल तौर पे अगर आप देखें कि जब आप कभी कभी डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स को ख्याल रखना चाहिए कि जो पेशेंट है या पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ वो ऐसे अल्फाज यूज करें जिससे जो है उनको समझ में आ जाए कि कौन सी बीमारी हो गई है। वो अगर टेक्निकल टर्म्स यूज करेंगे, मेडिकल टर्म्स यूज करेंगे, तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट द पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दोस मेडिकल टर्म्स आर। तो उसको हम कहते हैं जार्गन, यूज ऑफ जार्गन। ये है। उसके अलावा और भी चीजें हैं, इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स हैं। तो ये तो आपके 5 ट्रेडिशनल बैरियर्स हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि थोड़े से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक है आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। ये आप अगर नोट करें तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर कह सकते हैं, इसको बायस भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल बायस, बायस वो चीज होती है जिसके अंदर आपने ऑलरेडी कुछ पहले से असम्पशन के बेसिस के ऊपर आपने जो है अपने जहन में कोई चीज जो है बिलीफ या अपना आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि आपके सामने भले दूसरी चीज भी हो रही हो, लेकिन आप हमेशा उस चीज को अपने ही अंदाज से जज करेंगे। मिसाल तौर पे कोई लोगों को बायस होता है या प्रेजुडिस होता है। मिसाल के तौर पर आप क्या है कि कई लोग आपको मिलेंगे जो कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जो है अगर मैंने बिलीफ ये रखा हुआ है कि men are better cooks than women, तो अब चाहे खवातीन कितना भी अच्छा खाना बना लें, मैंने पहले से सोच के ये अपना सेलेक्टिव परसेप्शन रखा हुआ है कि नहीं, मर्द ही अच्छा खाना बनाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, या मिसाल के तौर पर आप कह लीजिए कि जैसा हम वैसे इस वाले पार्ट को, जरा परसेप्शन वाले बात हम आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 7 C's हम जो डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम जल्दी से इस बात को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मिसाल तौर पे अगर हम कहें कि जो है कुछ कई लोग हैं जैसे दुनिया भर में आजकल पाकिस्तानियों को कोई अच्छे अल्फाज से नहीं समझते। मिसाल तौर पर
अगर वो किसी पाकिस्तानी को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ऑल पाकिस्तानीज आर करप्ट पीपल, करप्शन करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो अगर ये परसेप्शन उन्होंने पहले से बना लिया है और आप बहुत सच्चे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, यू आर नॉट करप्ट एट ऑल, बट वेन एवर यू विल मीट दोज पीपल, उनके पास ऑलरेडी सिलेक्टिवली उन्होंने परसीव किया हुआ है आपके बारे में कि जो है नहीं, यू विल बी अ करप्ट पर्सन एंड डिसऑनेस्ट पर्सन। तो ये एक साइकोलॉजिकल बायसनेस है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कह सकते हैं इसको, कि बेस्ड on some sort of you can say perception which you have created already, because you are trying to make sense of the situation। तो आपने ऑलरेडी पहले से सोच के रखा हुआ है, अस्यूम करके रखा हुआ है कि वॉट एवर द केस इज, एनी पाकिस्तानी विच यू विल मीट विल बी a corrupt person or a dishonest person। तो अगर ऐसी बात है तो you cannot change the perception of the other person unless you have to give a lot of effort in order to remove this biasness or the perception which the other person has। तो ये बहुत ज़्यादा मसला एक होता है selective perception। तो इसके बारे में ये one of the important barriers है जो कि कभी-कभी इससे रिलेटेड सवालात आते हैं। इसके अलावा जो है आप नेक्स्ट उस पर आएंगे तो एक और बैरियर है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है। अपार्ट फ्रॉम दोज 5 बैरियर्स जो हमने पहले डिस्कस किया है, ये उन्हीं के अंदर शामिल है। सेलेक्टिव परसेप्शन जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी आप इन वन वे कह सकते हैं कि ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर ही है एक तरीके से। वो ये होता है कि मिसाल के तौर पे इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो कई बुक्स में तो ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास बहुत ज्यादा अगर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए, जैसे मिसाल तौर पर आपका ईमेल इनबॉक्स जो है वो बहुत सारे मैसेजेस अगर आपके पास आ जाएंगे तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू रीड ऑल द मैसेजेस, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड अ सिचुएशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दूसरा इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसा मिसाल तौर पर मैं अक्सर ये कहता हूँ कि क्लासरूम के एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इंफॉर्मेशन ओवरलोड ये होता है कि मिसाल तौर पर आपकी क्लास में कोई टीचर आके, जैसे मिसाल तौर पर कम्युनिकेशन का टीचर आके आपको कुछ चीज पढ़ा रहा है, लेकिन उससे पहले आपने इकोनॉमिक्स की क्लास भी ली है, आपने उससे पहले अकाउंटिंग की क्लास भी ली है, सुबह से आप क्लासेस ले रहे हैं, थर्ड स्लॉट के अंदर आपकी जो है कम्युनिकेशन की क्लास है। तो थ्रू आउट आप जो है विदाउट ब्रेक आप 6 आवर्स की क्लासेस जो है लगातार लिए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली लिए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप रिटेन ना कर सकें सब इंफॉर्मेशन को, तमाम इंफॉर्मेशन को आप उसको जो है रिकॉल ना कर सकें या रिटेन ना कर सकें। आप कई सारी चीजें हैं जो कि आप बिकॉज यू आर टायर्ड, यू आर फटीग्ड, और आपको यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग और रिमेंबर एवरीथिंग, तो उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अच्छा, ये सिचुएशन अक्सर वक्त हमें क्लासरूम से बिल्कुल नजर आती है टीचर्स, लेकिन जो है जो जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो इस चीज को जाहिर नहीं करते, and they are normally silent and they try to obviously get as much information as they can, they do not complain about things। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ओवरलोड एक और दूसरी किस्म की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर रिपीटेड इंफॉर्मेशन आपको दी जाए किसी एक ही चीज के बारे में, तो हो सकता है आपके लिए वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाए। ऐसा भी होता है क्लासरूम में कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, दे नो अबाउट द टॉपिक एंड दे नो अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, but the teacher sometimes repeats the information। The teacher has to repeat the information because the teacher is teaching every other student in the class। तो उसको पता है कि भाई there are some students who are weak, for them the teacher sometimes may repeat the information which he or she wants to give। तो लेकिन जो अच्छा स्टूडेंट होता है, ऑल्दो उसको पता होता है कि जो है ये जो इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि ये शायद टीचर इसलिए रिपीट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो ये भी एक बैरियर कंसिडर किया जा सकता है समटाइम्स इन द कम्युनिकेशन, जब जिस पे आप कॉन्सेंट्रेट शायद ना करें तो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। एक और है बैरियर जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। ये वैसे तो आपने, क्योंकि आप लोग इंटरनेट यूज करते होंगे, उसके अलावा आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे भी जाते होंगे और सोशल नेटवर्किंग भी करते होंगे आप सब लोग, और कई ऐसे जो है एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि जिसमें फिल्टरिंग का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। लेकिन एक फिल्टरिंग का मतलब लैंग्वेज रिलेटेड है। वो ये होता है कि अगर आप डेलिबरेटली कोई इंफॉर्मेशन को दबा दें या सप्रेस कर दें या हाइड कर दें सो दैट यू फॉर योर ओन बेनिफिट, तो उसको भी हम कहते हैं फिल्टरिंग। यानी ये नॉर्मली फिल्टरिंग की जाती है सेंडर की तरफ से कि वो जानबूझ के कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के बजाय वो ऑब्वियसली कुछ इंफॉर्मेशन को छुपा लेता है या कुछ इंफॉर्मेशन को रोक लेता है, तो उसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा तो हो सकता है कि जो रिसीवर है वो मेरे खिलाफ हो जाए या जो है मेरे
ऑब्वियसली मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, यानी कोई कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन को वो जो सेंडर होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन नहीं करना चाहता, उस वजह से वो जानबूझ के कुछ इंफॉर्मेशन को जो कि अनएथिकल है। बेसिकली यू नीड टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन इफ इट्स इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। तो लेकिन आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अगर आप हाइड कर लेंगे, सप्रेस कर देंगे या रोक लेंगे, तो उसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। ये भी एक साइकोलॉजिकल इश्यू कह सकते हैं आप इसको। तो ये दो तीन जो अभी हमने बैरियर्स देखे हैं, सिलेक्टिव परसेप्शन है या बायस है या फिल्टरिंग कह लीजिए या इंफॉर्मेशन ओवरलोड करिए, ये कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल रिलेटेड बैरियर्स हैं। तो आप चाहे स्पीकिंग कर रहे हो चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली व्हेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, बैरियर्स हर जगह होते हैं, हर एलिमेंट या कंपोनेंट के पास हो सकते हैं। But as skillful communicators, as good communicators, we need to overcome all these barriers and we need to communicate effectively with the other person. अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो कम्युनिकेशन की बेसिक्स की कुछ चीजें डिस्कस की हैं। पर्पस इंपॉर्टेंट होता है, ऑडियंस इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में हमने बात की है, रोल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात की। अब थोड़ा सा हमें लैंग्वेज रिलेटेड देखना है, मैसेज रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है, जो कि मैंने आपसे कहा था कि बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज कम्युनिकेशन स्किल्स आर कंसर्न, क्योंकि विदाउट इफेक्टिव लैंग्वेज यू कैन नॉट इफेक्टिवली और सक्सेसफुली कम्युनिकेट इन बिजनेस। ठीक है ना? तो पर्पसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं, बैरियर्स को भी डिस्कस कर लिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिस्कस कर लिया, रोल ऑफ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिस्कस कर लिया, कम्युनिकेशन की एक दो डेफिनेशंस को भी हमने देखा। अब हम जरा थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए आप, या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे तो बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए, या आप कह लीजिए हम जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इज ऑल्सो सम इन सम वे फॉलोज लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। तो ये फॉर्मेलिटीज हैं आप कह लीजिए जो कि विच आर इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ऑब्वियसली 7 है यहाँ पे, जो कि C के साथ स्टार्ट होते हैं। कंसाइज होना चाहिए आपका मैसेज, स्पेशली वैसे ही हम जो ये कम्युनिकेशन जो 7 C's हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिकेशन जो है, ये ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जब रिटन कम्युनिकेशन हम करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा इसकी अहमियत है। एज फार स्पोकन कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन इज कंसर्न, समटाइम्स वी कैन ब्रेक these we may not be able to follow these characteristics, but as far as the written communication is concerned, वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। तो क्योंकि हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर की बात करेंगे, तो अभी से अगर हम कुछ बेसिक चीजें पहले से डिस्कस कर लेंगे तो आगे जाके हमें आसानी होगी समझने में, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन ऑब्वियसली इज मेजर पार्ट ऑफ योर business communication course, or and obviously you will be assessed in exams as well through your writing and reading skills। तो वो हमें देखने की जरूरत है। और आपको एक्सपोजर चाहिए बिजनेस कम्युनिकेशन का। नॉर्मली आपको चाहिए कि भाई what kind of language we are using, what kind of characteristics we should or you can say qualities communication in business के अंदर होती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो पहला जो है वो कंसाइसनेस है। कंसाइसनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, कॉन्क्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टिसी, कंसिडरेशन। इसको आप कंसाइज भी कह सकते हैं, कंप्लीट, करेक्ट, कॉन्क्रीट। तो कम्युनिकेशन शुड बी कंसाइज, कंप्लीट, करेक्ट, कॉन्क्रीट, clear, courteous, and consideration is also important, some of the important factors। सबसे पहला जो है वो है कंसाइसनेस। मिसाल के तौर पे मैं बिल्कुल बहुत ब्रीफली आपको बता रहा हूँ ये चीज, और ये नॉर्मली कंसाइसनेस का जो ताल्लुक होता है ना, वो होता ही है कि व्हेनेवर वी हैव क्रिएटेड अ मैसेज, उसको हम जब रिवाइज करते हैं ना उस मैसेज को, जैसे स्पेशली मैं अभी बात कर रहा था आपसे राइटिंग, रिटन कम्युनिकेशन, तो हमने कोई ड्राफ्ट लिखा या हमने कोई एक लेटर लिखा या मेमो लिखा या रिपोर्ट लिखी, अब उसको हम जो रिवाइज और प्रूफ रीड करते हैं ना, तो वहां पे कंसाइसनेस का कॉन्सेप्ट ज्यादा जो है अहमियत इख्तियार करता है कि हम चाहते हैं। अच्छा, कंसाइसनेस का मतलब कुछ छोटा नहीं होता, यानी शॉर्ट करना नहीं होता मैसेज को, बल्कि हमें कंसाइसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो है ब्रीफनेस के साथ। मैसेज को हमें ब्रीफ करना है, नॉट शॉर्ट। ब्रीफ एक अलग वर्ड है। ब्रीफ का मतलब ये होता है कि एज मच एज इज रिक्वायर्ड इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। तो मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड कंसाइज। शॉर्ट करने का मकसद, हमेशा कुछ लोग इसको समझते हैं कंसाइज करने का मतलब होता है टू मेक योर मैसेज शॉर्ट। सिर्फ शॉर्ट नहीं होता, इसके अलावा भी मतलब। तो कंसाइसनेस जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसाइसनेस मींस कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन द लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक, एक्सक्लूड्स irrelevant information in as few words, brief but कॉम्प्रिहेंसिव।
तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कंसाइजनेस के लिए कि हम फेमिलियर वर्ड्स यूज करें, प्लेन वर्ड्स यूज करें, सिंपल वर्ड्स यूज करें। अच्छा, सिंपल का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल छोटे बच्चों वाले अल्फाज यूज करें। सिंपल का मतलब ये होता है हमें ऑडियंस को देखना पड़ता है, हमें पर्पस और सिचुएशन को देखनी पड़ती है। तो ऑडियंस अगर वो वाले अल्फाज समझ सकते हैं तो उसके उनके लिए वो सिंपल हो जाएंगे, चाहे आप मुश्किल से मुश्किल अल्फाज यूज कर रहे हो। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि वो दूसरा ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज सिंपल वर्ड्स। तो फेमिलियर वर्ड्स का मतलब होता है ऑब्वियसली व्हिच द ऑडियंस नोज अबाउट इट। कंसाइज वर्डिंग्स होनी चाहिए, फ्लैपी एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, लॉन्ग लीड इन्स नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे फ्लैपी का मतलब होता है यानी एक्सपैंडेड एक्सप्रेशंस। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कई जगहों पे लिखा होता है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज यूजलेस। व्हाई? बिकॉज आप ये बताने की क्या जरूरत है कि यू आर राइटिंग अ लेटर। भाई ऑब्वियसली व्हेन पीपल विल रिसीव द लेटर, वो लेटर के फॉर्मेट को देख के ही समझ जाएंगे ये लेटर है। तो यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, यू आर जस्ट मेकिंग द एक्सप्रेशन फ्लैबी और लॉन्ग, which is not required. Instead of mentioning that you are writing a letter, you should mention what actually this letter consists of in the first few lines. तो flabby expressions को avoid करना चाहिए, redundancy नहीं होनी चाहिए। redundancy का मतलब होता है repetition, ideas की repetition। और redundancy जो ना वर्ड लेवल पे भी हो सकती है, सेंटेंस लेवल पे भी हो सकती है। कोशिश करें कि ना यूज करें, redundant words ना हो, या redundant ideas ना हो, यानी रिपीटेड आइडियाज ना। ट्राइट एंड आउटडेटेड। ट्राइट आउटडेटेड का मतलब यही है कि ओल्ड वर्ड्स, यानी जो ऐसे वर्ड्स जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, जो कि अब आजकल के मॉडर्न कम्युनिकेशन में पीपल आर नॉट यूजिंग इट, सो वी आर नॉट सपोज टू यूज old words or outdated words. ठीक है, the language always changes with the passage of time, with the age. तो उस हिसाब से आपको यूज करना है। स्लैंग्स नहीं होना चाहिए, जार्गन का भी मैंने आपको बताया था जब सेमेंटिक बैरियर्स को डिस्कस कर रहे थे कि टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। unless you are sure कि the other person will understand those terms, you should not be able to use jargon. Slangs का मतलब होता है ऐसे words जो कि normally हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे वर्ड्स जो कि स्वेरिंग वर्ड्स हैं, या ऐसे वर्ड्स जो कि बिल्कुल जो एक कॉमन मासेस की जबान के अंदर हम जो हम यूज करते हैं, वो वाले वर्ड्स हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम वी डू नॉट वांट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन आवर कम्युनिकेशन इन बिजनेस। सो वी ट्राई टू प्ले सेफ, वी डू नॉट यूज स्लैंग्स और स्वेरिंग और अब्यूसिव टर्म्स। तो स्लैंग्स का अभी कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर। क्लीशे कॉमन एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपनी बात को सेंटेंसेस कंप्लीट हम सेंटेंसेस यूज करें जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो, उसमें वर्ब भी हो, क्योंकि विदाउट वर्ब से आइडिया नहीं आएगा, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं आएगी, और कंप्लीट आइडिया कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि एक्शन ओरिएंटेड थोड़ा सा हम रखें अपनी लैंग्वेज को। स्लैंग का एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा तो पे यहाँ पे एक साहब है, वो कह रहे हैं कि Dilbert, my man, you are staying real and keeping to the core. So the other person says, is that good? Then the first person says, I don't even know what it means. And then for the second person says, why do you say things that have no meaning? Dude. So, you know, these terms, dude, or the words which you do not even know what it means, you should not be able to use, you shouldn't be using those words. So इस टाइप का example है। बिकॉज बात यह है कि अब देयर आर नॉट मेनी पार्टिसिपेंट्स है, तो कोई बात नहीं, वरना हम जो है कोई एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर कुछ सवाल, ये ऑब्वियसली सम सेंटेंसेस थे, वी कुड हैव ऑब्वियसली इसको करेक्टेड देम। जैसे मिसाल तौर पे अगर मैं कहूँ कि इसमें अगर आप फोर्थ वाला सेंटेंस देखें, one should know the basic fundamentals of clear writing. Now यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे redundancy का प्रॉब्लम है, redundant words है। कैसे? मिसाल तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है one should know the basic fundamentals. Basic और fundamentals more or less same चीज होती है। तो why are you repeating the idea? Instead of using basic and fundamentals together, you should use only one word. तो आप कह सकते हैं one should know the fundamentals of clear writing, or you can say one should know the basics of clear writing. So this is redundancy example. उसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पे दिया हुआ है keep this information on file for future reference. तो obviously you use reference for future, right? Right. So आप कह सकते हैं keep this information on file for reference or for future. One word.
उसी तरीके से अगर आप देखें कि यहाँ पे लॉन्ग लीड इन्स हैं या क्लैवी एक्सप्रेशंस हैं, मिसाल द फर्स्ट सेंटेंस pursuant to your request enclosed please find a check of rupees 15,000. Now instead of using pursuant to your request, which is again an old and outdated term, pursuant means as per your request. So ये pursuant पुराना word है, इसकी जगह आप कहें भाई at your request या as you requested. अच्छा, फिर आपने enclosed please, now या enclosed please find, enclosed का मतलब और प्लीज फाइंड का मतलब मोर लेस सेम. तो बजाय ये कि हम इस तरीके से स्टार्ट करें, आप बोल सकते हैं प्लीज फाइंड अ चेक ऑफ रुपीज 15,000 एंड यू जस्ट रिमूव द फर्स्ट पार्ट. उसी तरीके से जो है ऐसे वर्ड्स को यूज करना चाहिए जो कि टेक्निकल ज्यादा ना हो, जार्गन ना हो उसके अंदर. मिसाल लास्ट वाला एग्जांपल अगर आप देखें, कंप्यूटर्स कैन इन्यूमरेट पेजेस व्हेन द अप्रोप्रिएट की स्ट्रोक इज इंप्लीमेंटेड. अगेन टेक्निकल टर्म्स हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, समटाइम्स पीपल डू नॉट नो दीज वर्ड्स. इन्यूमरेट का मतलब होता है लिस्ट करना, पेजेस को लिस्ट करना. अच्छा, की स्ट्रोक ऑब्वियसली की जो कीज हम यूज करते हैं व्हेनेवर वी आर टाइपिंग समथिंग, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग की स्ट्रोक यू कैन से की. और इम्प्लीमेंटेड का मतलब है यानी प्रेस करना. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कंप्यूटर्स कैन लिस्ट पेजेस व्हेन द अप्रोप्रिएट की इज प्रेस्ड. तो इतनी सिंपल सी तरीके से यू कैन कम्युनिकेट इन बिजनेस, बट इफ यू आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, आगे चलते हैं. बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कंसाइजनेस को थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया. भाई कंप्लीटनेस का मतलब यही है कि यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन. यू शुड ट्राई टू सेंड इंफॉर्मेशन as if as much information as you can in the first time you communicate with the people. The reason is कि फ्यूचर करस्पॉन्डेंस की जरूरत ना पड़े. आप पहले ही मैसेज जो भेजें वो तकरीबन कंप्लीट भेजें ताकि दूसरे आदमी के पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आगे सेकंड स्टेप लेगा. तो कंप्लीट बहुत आसान है कॉन्सेप्ट समझना. करेक्टनेस का मतलब है या करेक्ट होना का मतलब है कि एक तो होता है कि द वे यू आर सेंडिंग द मैसेज शुड बी करेक्ट, दैट इज द चैनल व्हिच यू आर यूजिंग शुड बी करेक्ट, और वेदर यू आर यूजिंग द राइट मीडियम और नॉट, रिटन और ओरल. एक तो ये तरीका है. एंड देयर इज वन मोर थिंग, व्हाट यू आर सेंडिंग, द इंफॉर्मेशन यू आर सेंडिंग should also be correct. What kind of information you're sending, उसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, उसमें कोई उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो, या दूसरी चीजें हैं कि आपको ऑनेस्टली एंड सिंसियरिटी के साथ इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए आपकी. ये ना हो कि आप जो है उसके जो है डिसीव करने के लिए या मिसलीड करने के लिए लोगों को जो है गलत इंफॉर्मेशन भेजें. तो एक तो है व्हाट यू आर सेंडिंग शुड आल्सो बी करेक्ट एंड हाउ यू आर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन शुड आल्सो बी करेक्ट. करेक्टनेस का कॉन्सेप्ट ये है. आगे चलते हैं. कॉन्क्रीटनेस, ये जो है ये भी आसान है. इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड डेफिनेट रादर देन वेग या एम्बिगुअस वर्ड्स को यूज करने के. यू शुड बी मोर क्लियर, विविड, एक्सप्लिसिट एंड प्रिसाइज. अभी इसकी 2-3 एग्जांपल्स अभी देखेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन होने की जरूरत है. इसको हम वैसे कंसिडरेशन जो आखिरी वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी जरा देखेंगे इसको, कॉन्क्रीटनेस. तो स्पेसिफिक होना चाहिए इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट होनी चाहिए टू द मैसेज होना चाहिए. ठीक है, तो ये कॉन्क्रीटनेस है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं आगे साथ होते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द मैन आस्क्ड फॉर अ रेज. अब ये नहीं पता ये सांप कौन है एंड रेज कितना उसने रेज मांगा और किस टाइप का रेज मांगा. तो इसका जो मोर प्रिसाइज वे होगा इन कम्युनिकेटिंग इन बिजनेस वुड बी जेफ जोन्स आस्क्ड फॉर अ 10% सैलरी इंक्रीज. नाउ दिस 10% सैलरी इंक्रीज इज नॉर्मली अ स्पेसिफिक और प्रिसाइज वर्डिंग्स व्हिच यू आर यूजिंग फॉर कम्युनिकेशन. और आगे चलते हैं, इसमें एग्जांपल्स हैं और दिए गए. we do not have enough time for it, so we have to move on quickly. फिर है कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी का. क्लैरिटी का कॉन्सेप्ट है ऑब्वियसली मैसेज शुड नॉट बी एम्बिगुअस. क्लियर इंफॉर्मेशन हो चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन हो चाहिए जिससे जो है आपके जो है क्या कह सकते हैं ऑडियंस जो है समझ पाए कि व्हाट यू आर शेयरिंग. एम्बिगिटी का मतलब ये होता है कई दफा ऐसा होता है कि आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं उसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हैं. तो एम्बिगुअस वो पॉजिटिव कनोटेशन मीनिंग्स भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई यू हैव to use your choice of words should be such which can be clearly understood by the receiver. Otherwise confusion create हो जाएगी and the meaning can change drastically. तो clear होना चाहिए
इंफॉर्मेशन और जो तरीका होता है भेजने का मैसेज का, वो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हैं या जो स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट इन बिजनेस, वो भी क्लियर होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो अब इसके बाद जो है, जो 7 C's के अंदर जो है, जैसे मिसाल में कर्टिसी है, वो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। बाकी तो 3-4 अभी हमने जो डिस्कस किए हैं, जिसमें एक तो कंसाइसनेस हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगर हमें टाइम बचा तो मैं आपको और एग्जांपल्स बाद में दूंगा जब हम रिटन कम्युनिकेशन पे आएंगे। लेकिन अभी कंसाइसनेस है, कंप्लीटनेस है, करेक्टनेस है, कॉन्क्रीटनेस है एंड क्लैरिटी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है सी, वो है कर्टिसी। अब कर्टिसी का लोग नॉर्मली समझते हैं कि यू हैव टू बी सॉफ्ट एंड पोलाइट। देखिए, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ कर्टिसी इज दिस कि भाई यू हैव टू बी पोलाइट in your behavior, in your attitude towards others, and in your language as well. You should use soft and those words which do not hurt the feelings of others. एक तो ये कॉन्सेप्ट है कर्टिसी। एक और चीज है कर्टिसी के अंदर जो कि मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की जरूरत है, वो है इंक्लूसिव लैंग्वेज। ये वैसे अगर क्लासरूम होता तो मैं आपको बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझा सकता था, लेकिन हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत 1-2-5 मिनट के अंदर। लेकिन इंक्लूसिव लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ऐसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए जो कि फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बायसनेस हो, डिस्क्रिमिनेशन हो टुवर्ड्स एनी पर्सन, एनी रिलीजन, एनी यू कैन से एज, एनी जेंडर, any personality or any nationality. So you should be free from all kinds of biasness and discrimination towards other people. ठीक है, आप उनकी कोई डिसेबिलिटी को हाईलाइट ना करें, कोई आप उनके रिलीजन को, आप उनके एथनिक ग्रुप को या रेस को हाईलाइट ना करें अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर के थ्रू। ये वैसे इंक्लूसिव लैंग्वेज का ताल्लुक जैसे सेलेक्टिव परसेप्शन वाला जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे ना, परसेप्शन का, उसमें जो लोग सेलेक्टिवली परसीव करते हैं ना चीजों को, लोगों को, सिचुएशंस को, वो बायस होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए एज ए कम्युनिकेटर दैट वी शुड नॉट बी बायस एंड डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स एनी जेंडर और एज और नेशनैलिटी और एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो है मिसाल के तौर पे उसमें ये होता है कि जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंक्लूसिव लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है, अ लैंग्वेज व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनी जेंडर, एज, पर्सनैलिटी, एथनिक ग्रुप, रिलीजन, race, profession, etc. We need to avoid using those terms which reflect gender discrimination or biasness. इसके अंदर इसको अगर देखा जाए तो कई लोग होते हैं जो कि स्टीरियोटाइपिंग करते हैं या एथनोसेंट्रिक बिहेवियर होता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं आपको इंक्लूसिव लैंग्वेज का जरा सा एक एग्जांपल दिखा दूं। मिसाल तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो है पहला वाला एग्जांपल है, हैव यू कॉल्ड अ सेल्समैन। अच्छा, आजकल के जमाने में हमको पता है कि जो है not just men are working in various fields, but women are also working. तो एक जमाना था ट्रेडिशनली men used to work, तो वहाँ पे हमने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रोफेशनली हम लोग यूज करते थे, जैसे सेल्समैन है या स्पोक्समैन है या बिजनेसमैन है। लेकिन आजकल के जमाने में ऑब्वियसली यहाँ पे मैन रिप्रेजेंट कर रहा है मेल जेंडर को। एक तो होता है ना मैन, जिसको हम कहते हैं, जैसे ह्यूमन होता है या मैन होता है, जो कि मर्द औरत इंसानों को के बारे में हम मैन यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी हम जो मैन यूज करते हैं एज अ वर्ड, वो जो है मेल्स को जो है रेफर करने के लिए करते हैं। तो अब क्योंकि आजकल के जमाने में फीमेल्स आर आल्सो वर्किंग, तो हम जेंडर न्यूट्रल होने की जरूरत है। Instead of saying salesman, we can say salesperson. Instead of saying businessman, we can say business person. Chairman की जगह हम chairperson कहते हैं या सिर्फ chair कहते हैं, क्योंकि जो फीमेल जेंडर से they also working। तो ये एक तो चीज है जिसको हमें सोचने की जरूरत है अपनी लैंग्वेज के अंदर। कर्टिसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसके अंदर जाके आपको समझ में आएगा असल मायनों में इंक्लूसिव लैंग्वेज के बारे में। मैंने आपको बताया इंक्लूसिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि हर किस्म की बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी जेंडर, रेस, एज के या नेशनलिटी या पर्सनैलिटी के बायसनेस और डिस्क्रिमिनेशन से हमें अवॉइड करने की जरूरत है। तो उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव लैंग्वेज। तो ये आजकल जो टर्म्स हैं, बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन की जगह हम कहते हैं बिजनेस पर्सन, वो ज्यादा सेफ है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी न्यूट्रल है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर एक वर्ड है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग डॉक्टर होता है और एक लेडी डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर कोई वर्ड नहीं। एक्चुअली डॉक्टर कैन बी अ मेल और अ फीमेल, ये ऑलरेडी न्यूट्रल टर्म है। तो ये आजकल इंजीनियर जैसे न्यूट्रल टर्म है, अकाउंटेंट न्यूट्रल टर्म्स है। तो वी आर सपोज टू यूज दीज न्यूट्रल टर्म्स, जेंडर न्यूट्रल जो टर्म्स हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई फीमेल अकाउंटेंट है या मेल अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट इज एन अकाउंटेंट, डॉक्टर इज अ डॉक्टर।
पायलट इज अ पायलट, ठीक है, नर्स इज अ नर्स, नर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। हमारी सोसाइटी में नर्स को फीमेल कंसिडर किया जाता है, लेकिन दूसरे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड नर्स कैन बी अ मेल और फीमेल, इट्स अ न्यूट्रल टर्म ऑलरेडी। इसी तरीके से जैसे मिसाल नेक्स्ट एग्जांपल है, एवरी एग्जीक्यूटिव हैज हिज ओन ऑफिस। अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग हिज ओन ऑफिस, ये लग ऐसा रहा है कि एग्जीक्यूटिव्स आर ओनली मेल्स, तो हमें चाहिए टेंडम में टुगेदर हम जो है ना कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज करें जिससे ये रिफ्लेक्ट हो कि भाई सिर्फ मर्द एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते, फीमेल्स कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटिव। जैसे मिसाल के इसकी वेरिएशंस दी हुई हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरी एग्जीक्यूटिव हैज हिज ओन ऑफिस, आप कह सकते हैं जो है जैसे आखिरी वाला देखें अगर आप, एवरी एग्जीक्यूटिव हैज हिज और हर ओन ऑफिस, तो ये इस टाइप की लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए। या फिर आप ये प्रोनाउन को हटा ही दीजिए, पोजेसिव प्रोनाउन को, इंस्टेड ऑफ दिस आप कह सकते हैं ऑल एवरी एग्जीक्यूटिव हैज एन ऑफिस। या आप एक काम करें, अगर ये सिंगुलर, ये दोनों सेंटेंसेस जो है ना सिंगुलर फॉर्म में, तो बेहतर होता है जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे मेल और फीमेल्स को एक साथ यूज करने का हो और आप चाहते हैं हिज और हर यूज ना करें, तो आप प्लूरल कर दें, पूरे सेंटेंस को प्लूरल कर दें। जब भी कोई जनरल आइडिया या ओपिनियन देते हैं ना, जनरली, स्पेसिफिक ना हो, कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करें फिर तो आपको हिज और हर यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल एक ओपिनियन दे रहे हैं अपना, जैसा यहाँ पे जैसा दे रहे हैं आप, एवरी एग्जीक्यूटिव हैज हिज ओन ऑफिस, तो वहां पे प्लूरल फॉर्म यूज करिए सेंटेंसेस के। जैसे मिसाल के तौर पे फर्स्ट वाला है all executives have their own offices, या आप थर्ड वाला देखिए all executives have offices। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया इंक्लूसिव लैंग्वेज का, अगर आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है तो प्लीज पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको कोई सेंटेंस हो सकता है वो दे दें आपको, और वो क्या है कि भाई इसको इंप्रूव करें, या ऑप्शंस नीचे दिए हुए होंगे उसके अंदर आपको कहेंगे विच वन इज द इंप्रूव वर्जन। तो इफ यू डू नॉट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंक्लूसिव लैंग्वेज, इफ यू कैन नॉट फाइंड द बायसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द लैंग्वेज यूसेज, यू वोंट बी एबल टू करेक्ट इट। तो ये है, ये इसका ताल्लुक है कर्टेसी के साथ। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कर्टेसी का ताल्लुक जो है स्टीरियोटाइपिंग और एथनोसेंट्रिक बिहेवियर के साथ भी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। स्टीरियोटाइपिंग मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि अगर हम जो ना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को अगर हम एक क्वालिटी से एसोसिएट करते हैं कि तमाम सबके सब एक जैसे ही, तो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। वो असम्पशन के बेसिस के ऊपर होता है। मिसाल में मैंने कहा कोई अगर दुनिया भर में ये मशहूर हो गया है कि ऑल पाकिस्तानीज आर करप्ट पीपल, ना आप करप्ट है ना मैं करप्ट हूँ, लेकिन एज पाकिस्तानीज हमें दुनिया में स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो गए हैं कि उन्होंने जो है ना हमारे साथ ये क्वालिटी एसोसिएट कर दी है। वी आर नॉट करप्ट, वी आर नॉट डिसऑनेस्ट पीपल, बट it's a possibility that the Westerners or the people who are living in other countries, they may have met some Pakistanis who are biased or corrupt, but it doesn't mean that all Pakistanis are corrupt or biased. So stereotyping again is part of जो है biasness and discrimination। ये गलत है, ये आप stereotypes बना दें। या आप मिसाल तो हमारे माशरे में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं भाई खवातीन नहीं कर सकती या मर्द नहीं कर सकते। जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ड्राइविंग कर रहे हो रोड्स के ऊपर, तो वहां पे अगर कोई वुमेन आर ड्राइविंग, तो पहले से लोग बोलना शुरू कर देते हैं यार ये बहुत खराब ड्राइविंग करेगी। हालांकि हो सकता है दिस द वुमेन मे बी ड्राइविंग बेटर देन द मेल्स, लेकिन स्टीरियोटाइप ज़हन में क्या मर्दों के आ गया है ट्रेडिशनली कि नहीं खवातीन अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती, जो कि गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस के अंदर इट इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट स्टीरियोटाइप अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, और यू कैन नॉट जस्ट इफ समवन इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप एज एन इंडिविजुअल, तो आप उसको ये ना देखेंगे कि भाई वो ग्रुप के जो खुसूसियत है वो पूरे सबके सब एक जैसे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। उसी तरीके से एक चीज होती है एथनोसेंट्रिज्म, ये भी इंक्लूसिव लैंग्वेज है, ये भी कर्टियसी का ताल्लुक है। ये हम ये डिस्कस कर रहे हैं जब हम कर्टियस ना हो, अगर हम बायस होंगे, डिस्क्रिमिनेटरी होंगे, अगर हम स्टीरियोटाइपिंग करेंगे, या अगर हम एथनोसेंट्रिक बिहेवियर हमारा होगा, तो ये जाहिर करेगा कि हम बायस हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन के शिकार हैं, हम इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, हम कर्टियस नहीं। एथनोसेंट्रिक बिहेवियर क्या होता है कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को समझता है, वो दूसरे ग्रुप को इंफीरियर समझता है, अपने आप को सुपीरियर समझता है। मिसाल तौर पे जैसा हम कहीं होता है ना कि हम जैसे एक रिलीजन के लोग कहते हैं कि भाई हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं और वो इतने अच्छे मुसलमान नहीं हैं, तो ये एथनोसेंट्रिक बिहेवियर। उसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म आती है, उसकी वजह से जो है सोच जो है गलत अंदाज में आप सोचते हैं इस तरीके से। खैर मैं कोई पॉलिटिकल एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर आप देखें
कि जैसा इंडिया में जो वहाँ पे आरएसएस की जो मेंटालिटी है वो एथनोसेंट्रिक बिहेवियर की है। आरएसएस आइडियोलॉजी जो है वहाँ पे जो इसको पावर में है, वहाँ पे वो दे आर एक्चुअली दे कंसिडर दैट ऑल मुस्लिम्स और अदर हिंदूज एज वेल, यानी वो खुद तो हिंदूज हैं, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके उनके अंदर हिंदुइज्म के अंदर भी उनके पास कई सारे कास्ट सिस्टम्स हैं, तो वो अपने आप को सबसे सुपीरियर कास्ट समझते हैं आरएसएस वाले, ये जो गवर्नमेंट के लोग हैं, और जो जितने भी अदर हिंदूज हैं उनको इंफीरियर समझते हैं, अपने से कमतर समझते हैं। तो और जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, उनके ऊपर जुल्म करते हैं और उनको फिर मॉब अटैक्स करके उनको मार देते हैं, उनके राइट्स उन्होंने जो छीन ली है, जो कि गलत है। ये बिकॉज ऑफ दिस एथनोसेंट्रिक बिहेवियर, दिस इज अगेन शोज के यू आर नॉट कर्टियस। तो ये कर्टिसी का कॉन्सेप्ट है। इसके कुछ सेंटेंसेस और यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हमें अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे चलना है हमें। ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, वो है कंसिडरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 7 C's के अंदर। मैं इसको समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिडरेशन, जो नेक्स्ट वाला है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ऑल द अदर 6 C's आर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके अंदर ये कंसिडरेशन वाली आपके पास क्वालिटी है ना, तो ऑब्वियसली यू कैन बी द बेटर कम्युनिकेटर्स देन अदर। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है, जैसा हम कहते हैं ना, उर्दू में कहते हैं लिहाज करना। अब जब आप लिहाज करेंगे, जब तभी तभी आपको फिक्र होगी कि मेरे जो मैसेज मैं सेंड करूं वो ऐसा ऐसा सेंड करूं जो कि लोगों को समझ में भी आए और लोग जो है उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट भी करें। वैसे कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है केयरफुल नॉट टू बी इनकन्वीनियंट और टू हार्म अदर्स। It involves empathizing with others and taking into account such factors as the message recipient's viewpoint, mindset, education level, mood, desires, needs. तो इसका मतलब ये है कि ऑडियंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी यू एटीट्यूड होना चाहिए या ऑडियंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। यानी हमें देखना ऑडियंस की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस क्या चाहते हैं हमसे, और हमें ये भी कोशिश करना है कि हम ऐसे लैंग्वेज यूज करें, ऐसे वर्ड्स यूज करें, ऐसा मैसेज सेंड करें जो कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, विच कैन हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। एक तो हर्ट कर सकते हैं फीलिंग्स इफ यू आर नॉट कर्टियस, और वही मैं आपको कहता हूं कंसिडरेशन में कर्टिसी भी आ जाती है। उसी तरीके से अगर आप जो है ऑडियंस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, ऑडियंस फोकस्ड कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, तो जाहिर बात है फिर आप ज्यादा स्पेसिफिक होंगे, ज्यादा कॉन्क्रीट होंगे, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे। अगर आपको लिहाज नहीं है, अगर आपको लिहाज है, कंसिडरेशन को मैं लिहाज कह रहा हूँ, अगर आप लोगों का लिहाज करेंगे तो यू विल रिस्पेक्ट देम, ऑब्वियसली you will जो है provide complete information, you will provide correct information, you will try to be concise and brief rather than obviously wasting their time, ठीक है। you will also try to be clear, not ambiguous। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मेरे हिसाब से कंसिडरेशन का पार्ट है। तो कंसिडरेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो दूसरे सीज को भी अपने अंदर लेके जाता है। अगर आपको लिहाज होगा तो तभी आप ख्याल करें। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ कि आप अगर उनकी सीरत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो है उनके पास ये सब क्वालिटीज थी। whenever he used to communicate, he was a skillful communicator, he used to communicate effectively with the people। वो देखें हमेशा जो है जब भी बात करते थे वो जो है ब्रीफ बात करते थे, कंसाइज बात करते थे, मतलब इररेलेवेंट बातें नहीं करते थे। जब वो जो है बात करते थे क्लियर होती थी, एम्बिगुअस बात नहीं होती थी, जो बात समझाना चाह रहे होते थे वो दूसरे आदमी को समझ में आ जाती थी, कॉन्क्रीट होती थी, स्पेसिफिक होती थी टू द सिचुएशन, टू द पर्सन, ठीक है। ऑब्वियसली मोर फोकस्ड होती थी, कॉन्क्रीट होती थी, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, राइट, क्लियर इंफॉर्मेशन होती थी, ठीक है, कंप्लीट होती थी, प्लस कर्टिसी थी, बहुत ज्यादा कर्टियस थी। सिर्फ सॉफ्ट और पोलाइट के अलावा obviously he was very inclusive। उनको पता था कि if I will be biased and discriminatory towards people, their feelings may be hurt, they may feel as if उनको ऑफेंड नहीं करते थे, उनको हर्ट नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और जो है बिल्कुल उनकी कोई जैसे ग्रुप को, वो इंडिविजुअल को एज एन इंडिविजुअल लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि वो जो है कोई मिसाल तौर पे स्टीरियोटाइपिंग का शिकार हो जाए या ऑब्वियसली एथनोसेंट्रिक बिहेवियर नहीं होता था।
उसी तरीके से वो सबसे अहम जो चीज थी वो कंसिडरेट थी, वो ऑडियंस फोकस्ड कम्युनिकेशन करते थे, वो यू एटीट्यूड होता था उसके अंदर। अच्छा, ये यू एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम अभी थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको पूरा कंसिडरेशन का समझ में आ जाएगा। तो यू एटीट्यूड ऑडियंस फोकस्ड कम्युनिकेशन होती थी। और ये हमें हमारे माँ बाप ने भी हमें सिखाया बचपन से कि वी हैव टू फॉलो दीज 7 C's। वैसे तो हमने कम्युनिकेशन में आके पढ़ा है, लेकिन ये हमारा ब्रॉटअप ऑलरेडी ऐसा है माशाल्लाह से, हमारे कल्चर के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रिलीजन के अंदर हमें ये सब चीजें पहले से सिखाई जाती हैं। तो ये कोई एलियन या न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। ये वेस्टर्नर्स के लिए, वेस्टर्न पीपल जो कि हमारे मुल्क में नहीं रहते, जो कि वेस्ट में रहते हैं, हो सकता है उनके लिए ये नया कॉन्सेप्ट हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारे इट्स पार्ट ऑफ अ रिलीजन, इट्स पार्ट ऑफ अ यू कैन से ब्रॉट अप दैट वी आर टॉट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। तो कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर यू एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है, लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्पेक्ट्स द रीडर्स इंटेलिजेंस, प्रोटेक्ट्स द रीडर्स ईगो। ईगो सेल्फ एस्टीम होती है। ऑब्वियसली आपको उनका ख्याल रखना चाहिए लोगों का, कि जो है उनकी सेल्फ एस्टीम हर्ट ना हो। एम्फसाइजेस व्हाट द रीडर वांट्स टू नो, और ऐसी चीज आप ऑब्वियसली शेयर करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो कि ऑडियंस सुनना चाहती है आपसे, या उसकी नीड्स को और उसके डिजायर्स को आप कंसिडर करते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव द यू एटीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जानबूझ के इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्स में सवाल आते हैं। मैं जरा बड़ा फोकस करके इस वक्त मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। वैसे तो किताबें आपके पास हैं ऑब्वियसली, आप चाहें तो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स आप आईसीएमए की स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हैं, आप सीए की स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हैं, आप एक्सेलेंस इन बिजनेस कम्युनिकेशन भी वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये चीजें एम्फेसाइज इतनी ज्यादा हुई भी नहीं है बुक में, लेकिन सवाल इससे रिलेटेड आते हैं, इसलिए मैं आपको जो वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपके लिए मैटर करेंगे एग्जाम्स के लिए। क्योंकि यू एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट भी एक है, आपको अगर इसके बारे में आज समझ में नहीं आता तो इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीजिए, कम से कम गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। तो आप कैसे होगा ये कि लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिस्पेक्ट द रीडर्स इंटेलिजेंस या ईगो, और एम्फसाइज व्हाट द रीडर वांट्स टू नो, यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू टॉक अबाउट द रीडर, डोंट डिस्कस फीलिंग्स एक्सेप्ट टू ऑफर कॉन्ग्रेचुलेशन। इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में कम से कम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरा आदमी कैसे फील कर रहा है। अब अगर आप ये बोलेंगे भाई यू विल बी वेरी हैप्पी, तो आपको कैसा पता कि दूसरा आदमी हैप्पी हो आपकी बात सुने। तो कोशिश करते हैं, हम अवॉइड करते हैं जो है फीलिंग्स को कम से कम यूज करते हैं। हाँ, अनलेस वी आर एक्सप्रेसिंग जेन्युइन फीलिंग्स, जैसा मिसाल तौर पे किसी जैसे कंडोलेंस मैसेज किसी को भेजना है या थैंक यू करना है किसी को, तो वो वहां तो सही है, अलाउड है। लेकिन नॉर्मली जब हम बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वहां पे हम एक्सप्रेस नहीं करते फीलिंग्स को। तो इसका मतलब ये है कि हम यू एटीट्यूड को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हाउ द अदर पर्सन विल रिएक्ट। अच्छा, बिजनेस के अंदर कभी कभी पॉजिटिव सिचुएशंस होती है और कभी कभी नेगेटिव सिचुएशंस होती है, एंड समटाइम्स यू हैव टू कम्युनिकेट बोथ द सिचुएशंस। तो पॉजिटिव जब सिचुएशंस हो तो हम कोशिश करें कि यू एज अ प्रोनाउन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि हमें ऑडियंस फोकस रहना है, और हमें आई और वी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आई और वी से ये होता है कि हम ऐसा लगता है कि जो सेंडर है, इंफॉर्मेशन जो सेंड कर रहा है वो अपने बारे में बात कर रहा है, बजाय हम अपने बारे में बात करें या अपनी इंपॉर्टेंस झाड़ें, कोशिश करें कि ऑडियंस के ऊपर फोकस रखें। आप देखें ना, जो एडवर्टाइजिंग, अगर आप देखें दुनिया भर में जो एडवर्टाइजिंग होती है, चाहे वो टेलीविजन कमर्शियल्स हो या बिलबोर्ड्स हो या प्रिंट एड्स हो, वहां पे हम नोट करिए, वहां पे जो लैंग्वेज यूज होती है ना वो यू एटीट्यूड वाली होती है। वो कस्टमर्स की बात करते हैं, वो अपनी बात नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। तो जी ये जो है ना, ये यू एटीट्यूड, क्योंकि वो भी बिजनेस कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस ना एडवर्टाइजिंग। तो दे नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड द ऑडियंस। तो यू एटीट्यूड के अंदर यू शुड अवॉइड यूजिंग वी एंड आई। मिसाल तौर पे आई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसमें यू एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। अवॉइड यू इन नेगेटिव सिचुएशंस। अच्छा, उसी तरीके से कभी कभी हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन वहां पे हम कोशिश करते हैं कि यू ना इस्तेमाल करें, यू एज अ प्रोनाउन या योर्स एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल। सिर्फ यू एंड योर यूज करने से यू एटीट्यूड नहीं होता, खाली उसके अलावा भी होता है, लेकिन अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो है इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि हम, यानी अगर हम यू एंड योर का इस्तेमाल करेंगे तो मिसाल तौर पर दूसरे आदमी को इसका मतलब हम ब्लेम कर रहे हैं या उसको एक्यूज कर रहे हैं ऑफ समथिंग which may not be good for communication। अब एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। अब मिसाल तौर पे यहाँ पे पहला वाला एग्जांपल है,
I have negotiated an agreement with Apex Rent a Car that gives you a discount on rental cars. अब यहाँ पे सेंटेंस में आप नोट करिए, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है I have negotiated an agreement. अब इसका मतलब ये जाहिर कर रहा है जो पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज वो कह रहा है कि मैंने कुछ आपके लिए किया है और जिसकी वजह से आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा रेंटल कार्स में. अच्छा, इसका जो बेटर अप्रोच है, जो कि यू एटीट्यूड जिसके अंदर है, वो वाला एग्जांपल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है यू कैन नाउ गेट अ 20% डिस्काउंट व्हेन यू रेंट अ कार फ्रॉम एपेक्स. अब यहाँ पे इट्स मोर फोकस टू द ऑडियंस. वो क्या, अच्छा फिर सेकेंडली जैसा पिछले वाले सेंटेंस में दिया हुआ था आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्क्रीटनेस आ गई, यहाँ पे मोर स्पेसिफिक हो गया. आप 20% डिस्काउंट क्यों किया आपने, कॉन्क्रीटनेस क्यों लेके आए? क्योंकि आप चाहते थे भाई, बिकॉज यू आर यूजिंग कंसिडरेशन. मैंने आपसे कहा था ना, कॉन्क्रीटनेस कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. तो ये दिस वन इज द बेटर एग्जांपल. यू कैन नाउ गेट, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हैव डन समथिंग फॉर यू, आप बोले यू कैन नाउ गेट समथिंग by just simply renting a car from Apex and you will get a discount as well. आप देखें, अगर अपनी लाइफ के अंदर भी देखें तो अगर आपसे कोई कहे कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो पहला सवाल आपका ये होता है कि भाई आप कितना डिस्काउंट देंगे. तो स्पेसिफिक करने की जरूरत है, कॉन्क्रीटनेस लेके आने की जरूरत है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है, फीलिंग्स को कम से कम मेंशन करने की जरूरत है, तो आप यू एटीट्यूड हासिल कर लें. और भी एग्जांपल्स हैं यू एटीट्यूड के. मिसाल तो भाई ये वाला एग्जांपल है कि ये तो खैर सही है, congratulations on your promotion to district manager. Instead of saying you will be happy to hear that you are promoted to district manager, again feelings आ रही हैं यहाँ पे. You will be happy to know. How do you know कि भाई other person can be happy? Whatever the case is, हम बजाय हमें ज्यादा बनावटी होने की जरूरत नहीं है, हमें pretentious होने की जरूरत नहीं है. हालांकि वहाँ पे you का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग कि भाई आप बहुत खुश होंगे. जैसे अक्सर होता है ना कि आपके दोस्त अगर आपको कहें कि जो यार तुम्हें नहीं पता मैं कितना ज्यादा खुश हूँ कि तुमने ये चीज अचीव करी है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता था. आप उससे सवाल ये पूछेंगे भाई तुम इतना ज्यादा क्यों खुश हो रहे हो, हद से ज्यादा क्यों खुश हो रहे हो. खुशी तो होती है हर दोस्त को, लेकिन आप देखें अक्सर होगा जब कुछ लोग जो ना हद से ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को, तो आप भी हैरान हो जाते हैं कि यार इनको क्या हो गया. तो देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर आप कभी कभी लोग जो है ज्यादा थोड़ा सा एक डिसेंट वे में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं बाय सेइंग कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट एंड सो ऑन. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू विल बी हैप्पी आप कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस. उसी तरीके से कुछ कभी कभी नेगेटिव सिचुएशंस भी होती हैं. वहां पे जैसा ये है एक नेगेटिव सिचुएशन, कोई अगर आपको कहे कि यू फेल टू साइन योर चेक, इसका मतलब क्या है? ये चेक वैसे अमेरिकन स्पेलिंग है, इंग्लिश स्पेलिंग जो होती है ब्रिटिश स्पेलिंग वो है CHECQUE, सॉरी CHEQUE. तो ये भी सही स्पेलिंग है, अमेरिकन स्पेलिंग है चेक. तो मिसाल के पे अगर आपने चेक साइन नहीं करा और जो कैशियर है उसने आपसे कहा कि भाई आपने जो है चेक साइन नहीं किया, आपने साइन नहीं किया, तो हो सकता जो 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 रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है वो अफेक्ट होता है. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वो कैशियर ये भी तो कह सकता था कि योर चेक वाज नॉट साइन. हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं नेगेटिव के अंदर, हम फीलिंग्स को भी अवॉइड करते हैं, इम्पर्सनल हो जाते हैं ज्यादा, और बजाय हम एक्टिव वॉइस यूज करने के नेगेटिव इंफॉर्मेशन को हम पैसिव वॉइस के अंदर यूज करते हैं. क्योंकि पैसिव के अंदर आप सब्जेक्ट को जो है ना आखिर में ले जाते हैं, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यू एटीट्यूड की. इसके लिए आपको पढ़ना है तो आप सीए की स्टडी टेक्स्ट से भी पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और भी कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइड के अंदर, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास कुछ टाइम की शॉर्टेज है. मैं चाहता हूँ कि आज ही हम ये कुछ बेसिक्स को ज़्यादा डिस्कस कर लें ताकि हम कल दूसरे टॉपिक्स को भी डिस्कस करें. कल हम ऑब्वियसली वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट ओरल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फिर हम एंड सो ऑन. फिर आगे हम रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर आएंगे, 1-2 दिन वहाँ पे होंगे. फिर आखिर के कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. तो क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा मेजर है तो हमें वो भी उसके ऊपर कम से कम हमें 2 क्लासेस या 2.5 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी. खैर जहाँ तक ये है कि बेसिक्स की बात है तो ये और भी एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख सकते हैं. ठीक है, तो अब आते हैं हम आज के आखिरी टॉपिक के ऊपर, वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ये जो हमने बेसिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसके अंदर हम पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन डिस्कस किए, प्रोसेस को डिस्कस किया, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया, हमने रोल ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर लिया, और व्हाट फैक्टर्स आर changing the working conditions or working workplace nowadays and how communication skills are becoming more and more important today. ये सब चीजें हमने इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के वो हमने डिस्कस कर लिया. उसका सेकंड जो मेजर टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन रिलेटेड.
और उससे कुछ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। आपको पता है कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन या तो कम्युनिकेशन इंटरनल होगी, एंड समटाइम्स कम्युनिकेशन जो है या मैसेजेस आर सेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। तो उसको फंक्शन जो होता है इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है। उसी तरीके से आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन ज़्यादा इंटरेक्टिव हो गई है, मोबाइल हो गई है, इंस्टेंट हो गई है। इंस्टेंट मीन्स क्विक हो गई है। Obviously, we communicate by using oral communication mediums or written communication mediums, and the delivery style is obviously online या electronic है, and obviously paper based है या hard copy है। तो ये तो आपको पता ही है कि ये तो बेसिक चीज है। हमें जो डिस्कस करना है वो हमें कुछ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप देखेंगे तो वो एक हायरार्की के जरिए हम डिफाइन कर सकते हैं। वो एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट से आपको नजर आ जाएगा कि जो है कोई भी चाहे स्मॉल स्केल हो या मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे भी कंपनी हो, वहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, सबकी अपनी डेजिग्नेशन से पोजीशंस और लेवल्स होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं हायरार्की होती है। तो कम्युनिकेशन जो फ्लो करती है ना बिटवीन दीज हायरार्की, उसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। द वे इट इज यू कैन से इट फ्लोज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब जाहिर सी बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन which is done to achieve organizational success, organizational goals. So ये नहीं है कि obviously anyone can communicate with anything. Official information जो होती है ना, जो भी communication जो भी होती है, वो एक proper structure, channeling या flow को follow करते हैं। तो वो क्या है हम देख लेते हैं आगे। ये सेकंड मेजर टॉपिक है बाय द वे आपके सिलेबस का। तो आपको पता है जाहिर सी बात है, रिटन कम्युनिकेशन भी होती है, ओरल कम्युनिकेशन भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन तो होती है, लेकिन इसका जो फ्लो होता है, यानी जो जो मैंने आपसे कहा कि ईच ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड बाय फॉर्मल अथॉरिटीज गिवन टू द पीपल, राइट। उनकी अपनी एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है हर पोजीशन की, हर डेजिग्नेशन की, और उसको आप एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के अंदर आराम से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ऊपर जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी होता है, उसके नीचे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, उनके नीचे जो है डिफरेंट फंक्शंस के मैनेजर्स या डिपार्टमेंट हेड्स हो सकते हैं। और अगर नीचे चले आए तो हर डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स के नीचे जो है असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर और उनके नीचे सुपरवाइजर्स। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट या फंक्शन की बात करें हम, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं। और पूरा नीचे तक सबसे आखिरी वाले लेवल पे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है, वहाँ पे लेबर फोर्स है या वर्क फोर्स होती है। तो एक तो अपर मैनेजमेंट होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है, और एक लोअर मैनेजमेंट होती है। तो इसको हम कहते हैं हायरार्की के अंदर डिवाइडेड है। हायरार्की यानी स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइडेड है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। और मैंने आपसे कहा कि जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर होती है, मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस, मीटिंग्स होती हैं। उसके अलावा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है, और ईमेल के थ्रू भी हो सकती है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। लेकिन ये जो इसका फ्लो है ना, वो हमें डिस्कस करना है। देखिए भाई, अभी हायरार्की की बात हो रही थी, तो जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होती है या फ्लो होता है, यानी उसकी आपके नीचे डायरेक्शन क्या होता है या फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होती है, वो कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो दो मेजर किस्म की होती है। एक तो होती है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि अपवर्ड कम्युनिकेशन हो और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जाहिर बात है, अपवर्ड कम्युनिकेशन वो है जो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग अपर लेवल मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर मिडिल मैनेजमेंट के लोग अपर लेवल मैनेजमेंट के लोगों से बात करेंगे, टॉप मैनेजमेंट के लोगों से, तो वो भी अपवर्ड, उसका फ्लो क्या है, अपवर्ड। और जो जो टूल्स यूज करेंगे फॉर कम्युनिकेशन वो वही है, रिटन कम्युनिकेशन टूल्स या ओरल कम्युनिकेशन, यानी मेमोरेंडम्स है या लेटर्स हैं। लेटर्स जो है नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, राइट, और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। उसी तरीके से रिपोर्ट्स हैं, तो उसका जो फ्लो और डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड भी हो सकता है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन दो किस्म की होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, राइट। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन है। और दूसरी कम्युनिकेशन होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो कि होती है सेम लेवल पे। हॉरिजॉन्टल को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी कहते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन, लेटरल, LATERAL। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन
हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन होती है सेम लेवल पे, यानी एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करे, या एक सुपरवाइजर दूसरे सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करे, या एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से कम्युनिकेट करे, तो वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है वो हमेशा डिफरेंट लेवल्स के बीच में होती है, राइट। तो अगर इफ द प्रेसिडेंट वांट टू कम्युनिकेट समथिंग विद द डायरेक्टर्स, तो वो उसका 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 जो फ्लो होगा वो डाउनवर्ड होगा। उसी तरीके से अगर मैनेजर चाह रहा है कि डिपार्टमेंट हेड से बात करे, तो उसका फ्लो होगा अपवर्ड। तो ये नॉर्मली दो किस्म की मेजर कम्युनिकेशन टाइप्स हैं। ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, चैनलिंग कह लीजिए, फ्लो या डायरेक्शन कह लीजिए, जो कि हायरार्की या स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जो कि फॉर्मल अथॉरिटी को फॉलो करता है। अच्छा, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन में अब क्या होगी, नॉर्मली किस टाइप की कम्युनिकेशन होगी वो हम देख लेते हैं। पहले तो हम डाउनवर्ड देख लेते हैं, जो कि मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स होती है, या सुपरवाइजर्स सुपरवाइजीज से करते हैं, यानी नीचे वाले लोगों से अपर वाले लोग जब बात करते हैं, नॉर्मली वो किस टाइप की कम्युनिकेशन करते हैं। वो यानी मिसाल में कोई पॉलिसीज हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑर्डर्स या प्रोसीजर्स को वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स के जो भी हर पोजीशन की अपनी एक कैपेसिटी होती है टू डिसाइड अबाउट सर्टेन थिंग्स। तो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट डाउनवर्ड्स, तो आप नॉर्मली आप इंस्ट्रक्शंस देंगे लोगों को, अपने से नीचे वाले लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, या प्रोसीजर्स डिस्क्राइब करेंगे, या पॉलिसीज शेयर करेंगे, या कोई आप प्लान्स शेयर करते हैं नॉर्मली, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके नीचे वाले लोग। तो ये मतलब ये फॉर्मल अथॉरिटी, इसका मतलब कोई उदाहरण वास्ता स्टेटस या कोई औकात की बात नहीं है। ये एक्चुअली ये फॉर्मल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को मिलती है, राइट। तो ये कोई बुरी चीज नहीं है, कोई भी डेजिग्नेशन पे आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि who is communicating with you, right? If the person who is at a higher designation than you, so this person has a right to decide about certain things, has a right to give instructions to you, has a right to share policies and procedures, and you have to follow it. You cannot, obviously, you have to listen to the your superior in that sense. तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हमेशा इस तरह की कम्युनिकेशन होती है। और मैंने आपको बताया तरीकेकार वही होते हैं, ओरल और रिटन कम्युनिकेशन चैनल्स, जो आपको पता ही है। उसी तरीके से अपवर्ड कम्युनिकेशन में नॉर्मली किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है, जैसे रिपोर्टिंग हो गई, कोई किसी को कोई कंप्लेन करनी है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, या कोई फीडबैक देने की जरूरत है। अगर ऊपर वालों ने आपसे कहा कि ऑब्वियसली यू नीड टू प्रोवाइड अ फीडबैक अबाउट अ प्रोजेक्ट और एन असाइनमेंट, सो यू विल हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक। वंस यू प्रोवाइड द फीडबैक टू योर मैनेजर, टू योर सुपीरियर, that the flow would be regarded as the upward communication. So it normally flows from employees to decision makers. तो हमेशा डिसीजन मेकिंग टॉप से होती है, बॉटम से नहीं होती। तो ये दूसरी कम्युनिकेशन है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे कुछ बैरियर्स भी आते हैं ऑब्वियसली इन कम्युनिकेशन। अगर लोगों को अपनी अथॉरिटी का ना पता हो, अगर लोग जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स को अगर यूज ना कर रहे हो, तो कई सारे मसले पैदा हो सकते हैं। एक और भी होती है कम्युनिकेशन इसी के अंदर, जो कि वर्टिकल कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं। उसको कई सारी बुक्स में आपको नजर आएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल का मतलब होता है अक्रॉस, या आप कह लीजिए 45 डिग्रीज के एंगल के ऊपर। अगर कोई हायरार्की को आप देखें, तो मैं अभी आपको ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया था, तो अगर आप हायरार्की देखें, तो इसमें यहाँ पे मिसाल तौर पे अगर कम्युनिकेशन ऐसा हो रही है कि एक डिपार्टमेंट का मैनेजर दूसरे डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट से अगर बात कर रहा हो, तो इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहेंगे। या एक डिपार्टमेंट का मिसाल तौर पे जो है कोई सबऑर्डिनेट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा होगा, तो इसका फ्लो होगा अक्रॉस। तो ये इसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ये जब होता है कि जब मिसाल तौर पे आपका इमीडिएट मैनेजर जो है, आपके डिपार्टमेंट का मैनेजर एब्सेंट हो जाए फॉर सम रीजन, एंड the other department managers gets the authority to manage your department as well, तो तब आप जो है diagonal communication कर रहे हो, ठीक है। वैसे ये बेस्ट के अंदर डायगोनल कम्युनिकेशन प्रेफर नहीं की जाती, वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो है अगर किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर या कोई बंदा छुट्टी पे चले जाए या एब्सेंट हो जाए, तो दूसरे लोगों को प्रमोट कर दिया जाता है उसकी जगह पे, राइट, फॉर द टाइम बीइंग। सो फिर वो इसका मतलब क्या है, जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं, they will report to the other person who gets that promotion. Instead of actually reporting to the manager of some other function or department, you will report to your immediate manager. ये बाहर के मामले, पाकिस्तान में नॉर्मली ऐसा होता है कि कभी कभी ये
बजाय दूसरे लोगों को उसी डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोट करने के, वो क्या करते हैं कि किसी और डिपार्टमेंट के मैनेजर को थोप देते हैं आपके डिपार्टमेंट के ऊपर। वो अपना डिपार्टमेंट मैनेज करेगा, उसके अलावा वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी देखेगा। तो ये जब कम्युनिकेशन होगी तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन होती है। इसके अलावा अगर मिसाल तौर पे आप जैसा आईटी का डिपार्टमेंट है या टेक्निकल डिपार्टमेंट है आपका, और आपके पास कोई आईटी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, और हो सकता है आपका मैनेजर आपको कहे कि भाई ना, आप सबऑर्डिनेट हैं एक मैनेजर के, आप और आपको कहे मैनेजर की जो है तुम एक काम करो, तुम जाके आईटी डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करो व्हाट काइंड ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, सो दैट communication which you will do with the manager of the IT department, that would also be regarded as the diagonal communication, or you can say communication which is across communication। ठीक है ना, तो ये एक चीज हो गई। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन तो ये हो गई। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होगा, जो कि लेटरल होती है, सेम लेवल पे होती है, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई शेयर्ड इंफॉर्मेशन टू कोऑर्डिनेट टास्क, सॉल्व प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो ऑब्वियसली, एंड इन योर डिपार्टमेंट या इन योर फंक्शन आपने कोई हो सकता है कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो आपने विद योर सबऑर्डिनेट्स, तो आप चाहेंगे कि instead of actually taking some action, before taking action you communicate with the manager of another department who is at your same level, and try to ask him what kind of obviously how to handle the conflict or resolve the conflict or manage the problems which you are facing in your department. So that communication would be regarded as horizontal communication। खैर ये अपनी जगह है। फिर एक चीज है आगे जाके, ये तो है सब फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस तरीके से होती है, लेकिन कभी कभी जो है एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क भी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन। उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन, GRAPVIN, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसको आप एक तरीके से समझ लीजिए गॉसिप। देखिए एज कम्युनिकेटर्स ना, एज ह्यूमन बींग्स वी कैन नॉट ऑलवेज बी डूइंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशंस। कई हमारे अपने कुछ दूसरे ख्वाहिशात भी होती हैं, हमारे टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुस्तकिल आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो। समटाइम्स you talk about politics and sports and other things, right? And as human beings, because we cannot just do a routine thing all the time। तो मिसाल तो इसका मतलब ये है कि जो है जो गॉसिप हो रहा होता है अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो दूसरे किस्म के टॉपिक्स के ऊपर, वेदर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। मैनेजमेंट वैसे दुनिया भर में अवॉइड करती है कि कम से कम गॉसिप हो, कम से कम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो, कम से कम र्यूमर्स को फैलाया जाए। वो क्योंकि वो ये समझते हैं इफ द पीपल आर गॉसिपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट मींस दैट दे डू नॉट हैव एनी वर्क टू डू। तो नॉर्मली हम जो है मैनेजमेंट कोशिश ये करती है कि कम से कम लोगों को मौका मिले गॉसिपिंग करने का या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन करने का, लेकिन आप लोगों को रोक नहीं सकते। कई मैनेजमेंट ऐसी होती है कि वो थोड़ा बहुत प्रेफर करती हैं कि सॉर्ट ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई मोनोटनी खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा लोगों को जो है रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है इन बिटवीन द वर्क। इफ दे हैव कंप्लीटेड द टास्क दे शुड बी अलाउड टू डू सर्टेन टॉक अबाउट अदर टॉपिक्स विद ईच अदर, सो दैट दे आर मोर रिलैक्स, दे आर मोर मोटिवेटेड एंड सो ऑन। तो कई मैनेजमेंट दुनिया में वैसे नॉर्मली मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अगर वो किसी को फारग देखते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसको कम से कम जस्ट काम दे दिया जाए। और लेकिन कई जो मैनेजमेंट जो अलाउ करती है वो अक्सर औकात बड़ी एम्प्लॉयज का फीडबैक लेने में आसानी होती है। उनको पता चल रहा होता है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या क्या वो खुश है या नहीं है काम से, तो वो गॉसिप्स के थ्रू उनको पता चल जाता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं वाटर कूलर कम्युनिकेशन। ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मिसाल के तौर पे आप पानी पीने के गए, वाटर कूलर के पास गए, वहां पे आपके बॉस आ गए, तो आप वहां पे बिल्कुल रिलैक्स वे में कम्युनिकेशन करेंगे। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑफिशियल मैटर्स यू विल टॉक अबाउट फैमिली, यू विल टॉक अबाउट वेदर, यू विल टॉक अबाउट स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स। तो इसलिए इसको कहते हैं वाटर कूलर कम्युनिकेशन। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन की, इसमें कोई फ्लो या डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे कोई फॉर्मल अथॉरिटी या पोजीशन या डेजिग्नेशन को मद्देनजर नहीं रखा जाता। यहाँ पे कोई भी पोजीशन का बंदा किसी भी पोजीशन के बंदे से गॉसिपिंग कर सकता है if you have good relationship with the other person। तो that is why this is known as grapevine communication and informal communication। informal से मुराद ये नहीं है कि आप कोई informal words को यूज करें, ये तरीक़ेकार जो अंदाज है ये अनऑफिशियल मैसेजेस को कैरी करता है, जो कि ऑफिस रिलेटेड नहीं होते, जो कि ऑफिस से बाहर के मामला होते हैं, राइट। तो ये एक तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क।
So you cannot avoid it, and but you can overcome the problems which you can deal with it sometimes. मिसाल तौर पे ये sorry, जैसे मिसाल तौर पे बैरियर्स टू द फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, या मिसाल तौर पे जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहां पे कभी कभी कोई बैरियर्स आ रहे होते हैं, कोई मसले पैदा हो सकते हैं। वो क्यों हो सकता है आपको पता है? वो जो 5 बैरियर्स की बात हमने पहले की थी, वो भी यहाँ पे भी मोर और लेस यूज हो रहा होगा। लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकती है, फियर ऑफ रिप्राइसल का मतलब होता है फियर ऑफ रिटेलिएशन, अनइवन रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं, क्लोज कम्युनिकेशन क्लाइमेट है। तो अगर मिसाल तौर पे क्लोज कम्युनिकेशन क्लाइमेट, मैंने पहले भी समझाया था कि आजकल के जमाने में ओपन कम्युनिकेशन क्लाइमेट है, लोगों को जो है अलाउ किया जाता है टू पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशन मोर एंड मोर, एंड दे कैन कम्युनिकेट विद मेनी पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बजाय ये कि जो है सख्ती की जाए, बहुत ज्यादा सीरियस एटीट्यूड रखा जाए, लोगों को मौका दिया जाता है। तो अगर वहां पे बिल्कुल जो है लोगों को अलाउ ना हो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो एक तरीके से बड़ा बैरियर बन सकता है। वो डीमोटिवेट हो सकते हैं, वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो कई सारे बैरियर्स आ सकते हैं इन दी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो उसको ओवरकम करने की जरूरत है। हमें चाहिए कि उसके लिए हम encourage करें open trusting environment for interaction and feedback, provide more information through formal channels। हाँ, वो जो है ना, एक तो वो ग्रेप माइन कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, जहाँ पे जिस जगह पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं कम होगी, वहाँ पे ग्रेप माइन बढ़ जाएगा, वहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा होगी। वहाँ पे फॉर्मल चैनल्स अगर लोगों को पता नहीं होंगे, फॉर्मल चैनलिंग या कम्युनिकेशन रिटन या ओरल कम्युनिकेशन कम हो रही होगी ऑफिशियल मैटर्स के रिलेटेड, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है ग्रेप माइन कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट दे नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर्क टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स दोज गोल्स। तो ये जरूरत है। Train managers employees to improve communication skills, and obviously at the end of it वहीं जाके बात अटकती है कि ये सब चीजें जो भी डिस्कस हमने की है, ये इसका ताल्लुक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ही है। सो एज कम्युनिकेटर्स, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, obviously you need to be trained, you need to be skillful, you need to do a lot of practice so that you can you should be exposed to different kind of situations in the world or in the organization, so that और आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने की कोशिश करें जहां पे कम्युनिकेशन क्लाइमेट ओपन हो, ताकि आपकी स्किल्स बढ़े वहां पे। obviously you get an opportunity to improve your communication skills, because communication is the key to success in this world, remember one thing। ये जितने भी कई लोग, हम लोग जैसे इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इजी लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑब्वियसली हम चाहे बचपन से पैदा होने से लेके जब तक हम मरेंगे, कम्युनिकेशन ही है जो कि हमें ऑब्वियसली will gain give us success in this world, right? And obviously qualification is another important factor, but if you are competent, how would you tell people that you're competent and qualified unless you communicate with them properly and skillfully? So आज के लिए हम जो है यहीं पे रुकते हैं। Obviously tomorrow we will deal with other topics, जो other major topics हैं। जाहिर सी बात है तमाम हर चीज तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अगर मिसाल तौर पे आप में से कोई अगर पार्टिसिपेट करेगा इस सेशन के अंदर, ऑब्वियसली मैं तो अलाउ करता हूँ स्टूडेंट्स को टू आस्क क्वेश्चंस ऑन चैट एंड अदर थिंग्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेस टॉपिक, या इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड जो हम कल टॉपिक्स पढ़ेंगे उससे रिलेटेड, कल हम वैसे नॉर्मली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे रिटन कम्युनिकेशन को भी डिस्कस करना शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमें ओरल कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत डिस्कस करना है। कई सारी चीजें तो ऑब्वियसली आपके स्टडी टेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। मैं चाहता हूँ ये जो सेशंस हैं, अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो वो इस सेशंस को यूटिलाइज करते हुए मुझसे इसमें पार्टिसिपेट करके मुझसे सवाल पूछे रिलेटेड टू द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेबस। दैट वुड बी better for your refreshing your knowledge about the course which you have already taken, I think so, say with other teachers. So thank you very much for today's obviously listening to today's lecture, and see you tomorrow inshallah.